اچھا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ایک منٹ شہزاد صاحب مجھے ان کا جواب دے لینے دیں. بات یہ آپ نے اتنی لمبی چوڑی کہانی سنا دی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا. آپ نے یہ کہا کہ جی اس نے پتہ نہیں کہا ہوگا، میں پتہ نہیں کہا ہوگا کہ وہ حقیقی نبی ہیں. تو حکیم نور الدین صاحب نے کہاں کہا کہ یہ ان کو حقیقی نبی مان رہا ہے، وہ والا نہیں مان رہا جو میں مانتا ہوں. حکیم نور الدین صاحب کسی بھی صورت میں ان کی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت صاحب ذلی بروزی استارہ کے رنگ میں مجازی غیر مجازی نبی ہیں، کہیں نہیں لکھا. دوسری بات، خلافت علی منہج نبوہ آپ نے کہا ہے نا، اور آپ حضرت صاحب کو نبی مانتے ہیں. حضرت صاحب کہتے ہیں میں خلیفۃ اللہ ہوں، خلیفۃ اللہ. انہوں نے نہیں کہا میں نبی ہوں میرے بعد خلافت. اور آپ حضرت مسیح موعود کا مجھے کہیں سے بیان لا کے دکھا دیں پورے لٹریچر میں جب سے وہ لکھ رہے ہیں اس سے لے کے 1907 تک کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں نبی ہوں اور میرے بعد خلافت ہوگی، خلافت علی منہج نبوہ کے تحت. کہیں دکھا دیں. آپ دکھا ہی نہیں سکتے، آپ مر جائیں گے لیکن آپ نہیں یہ دکھا سکتے. حضرت صاحب کہہ رہے ہیں میں خلیفۃ اللہ ہوں، اور آپ لوگوں نے قبر کا کتبہ تک بدل دیا. اس کے اوپر لکھا ہوا کچھ تھا، جب خلیفہ نور الدین صاحب نے کتبہ لگایا تھا وہ کتبہ اتار کے پرے پھینکا اور دوسرا لگا دیا جو اب لگا ہوا ہے. کیوں کیا آپ نے یہ دجل؟ آپ لوگ کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے. آپ ثابت کریں. آپ یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خلیفہ کی بات، خلیفہ کی بیعت میں آنے کا مطلب آپ کی جماعت کے سامنے پتہ کیا ہے؟ کہ اس کے سامنے سر نگوں کر دو. وہ اگر دن کو رات کہے تو تم نے رات ہی کہنا ہے، تم نے رات ہی اس کو کہنا ہے. تم نے یہ نہیں کہنا حضرت مسیح موعود نے یہ کہا تو فلانے نے صاحب ہمیں بھی اجازت دیں ذرا. آپ نے یہ اس کے اندر ہے نا، ایسا نہ کہ مجھے بات کر لینے دیں، میں نہیں بیچ میں بولا. مطلب خلیفہ جٹ صاحب بات کرنے دیں. یہ کہتے ہیں کہ جی خلیفہ کا بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے بیچ دینا، اس کی غلامی میں آ جانا. پھر آقا جو کہتا ہے نا جب اس کے غلام بن جائے تو پھر آقا کو درس نہیں دیا جاتا. آقا صاحب یہ بات غلط ہے، آقا صاحب یہ بات غلط ہے. وہ پھر جو کہتا ہے وہی ماننا ہوتا ہے. اور آپ یہاں پہ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ خلیفہ نور الدین صاحب نے اروپی کو کیوں نکالا تھا. میں بتاتا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اس نے حقیقی کہا ہوگا اس وجہ سے نکال دیا. شاید نہیں، وہ بھی یہی والی پڑھتا تھا حدیثیں، نبی اللہ نبی اللہ نبی اللہ. انہوں نے وجہ وہی ہے، یہ غلطی کا ازالہ جو نہیں. اب یہ نور الدین صاحب کا اس کا بات ہے. ایک غلطی کا ازالہ کا آخری لفظ یہ ہے محمد کی چیز محمد کے پاس رہ گئی، میرا نفس اس میں سے نکل گیا، ختم. ہاں تو وہاں پر دعویٰ تو نبوت کا ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ حفیظ شیخ صاحب آپ نے کشتی نو پڑھی ہوئی ہے؟ موسوی شریعت کے اندر حفیظ شیخ صاحب، حفیظ شیخ صاحب خرم صاحب ایک آپ نے کشتی نو پڑھی ہوئی ہے؟ خرم صاحب ایک منٹ دے دیو، پھر تس گل کر لو، آخری گل ہے میری. فی شیخ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں محمد کی چیز محمد میں رہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اسی طرح موسوی شریعت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں اور اس کے بعد قیامت تک اگر نبی آ بھی جائیں تو ظاہری بات ہے نا کہ اس ساری چیز کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور دوسری میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ان سے پہلے بھی سارے مجددین آئے، کیا کسی مجدد کی اسی طرح مخالفت ہوئی ہے؟ کفر کے فتوے لگے ہیں ان کے اوپر بھی؟ ذرا پلیز کوئی حوالے ہوں تو وہ مجھے آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں. بہت شکریہ. مرزا صاحب پہ لگے ہیں کفر کے فتوے، میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں لگے، اسی لیے تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. ابھی میں نے آپ کو امامۃ البشریٰ کا پڑھ کے بتایا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا میں نبی ہوں، انہوں نے میری بات سمجھنے میں جلدی کی اور غلط سمجھی کہ انہوں نے میری اچھا میری بات سن لیں. حفیظ شیخ صاحب آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود نے جو فرمایا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں اس وقت کا، وہ مسیح جو ہے وہ نبی نہیں ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ میرا دعویٰ نہیں ہے. مسیح ہندوستان میں کیوں لکھی ہے آپ نے کتاب؟ اپنے دعویٰ کی نسبت ہی لکھی ہے کہ مسیح ہندوستان میں آ چکا ہے، تو مسیح کون تھا؟ وہ مسیح حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا ہے، وہ جو ان کا دعویٰ. اچھا مسیح ہندوستان میں آئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، غلط بات مت کریں، غلط بات مت کریں. وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی قبر. حضرت، ہاں دیکھا، سن لیا نا،
वो उनकी मजाक कर रहे नहीं हैं, नहीं, वो अपना यहाँ दावा है और भी यहाँ- लिखा हुआ है बीच में। ओ भाई नहीं करो यार, ऐसे मेरी नहीं करो। निस्बत आप जो साहब ऐसे ये नहीं दावा करो। है, अच्छा, मेरी बात आपसे सुन ले। समझते हैं। आपने लो जी, मसीह अहमद नजीर साहब हिंदुस्तान नवी गल पता लगी है कि वो दस रहे हैं कि मसीह हिंदुस्तान में का मतलब है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हिंदुस्तान में। ये आज मेरे इल्म में इजाफा हुआ है। अच्छा, उसमें ये नहीं पढ़ा कि मुझे अल्लाह ताला ने बताया है कि मसीह मोहम्मदी मसीह मूसवी से बेहतर है, ये लिखा हुआ नहीं पढ़ा आपने? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ, तो पढ़ा हुआ, तो फिर क्यों नहीं समझ आई आपको कि मसीह मोहम्मदी का वजूद जो है मसीह मूसवी से बेहतर है? और बिल्कुल ऐसे मसीह ही। मूसवी कौन था? नबीउल्लाह था। मसीह मोहम्मदी कौन है? नबीउल्लाह नहीं है, तो कौन है फिर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये दलील आपकी दुरुस्त है। आप बातें बनाते हैं अपने पास एक मुजद्दिद उन्हें तो पता जब क्यों? किया है, मेरी बात सुन ले, कल्ला है, वो- मुजद्दिद का दावा जब मसीह ने किया है, बात सुने, मैं यहाँ मेरी बात सुन लेना, हज़रत मसीह वसल्लम ने जब दावा किया है, यहाँ पे ख्वाजे के गवाह आते जाएंगे। हाँ जी, वो 1882 के बाद को आप लेके आगे चल रहे हैं। किसी ने मुझे कहना है कि तेरी बात ठीक है, यहाँ तो सारे ख्वाजे के गवाही बनेंगे ना। ओ आपकी बात भाई बिल्कुल मेरे ठीक है, जब साहब, आपकी मसीह, बात बिल्कुल ठीक है। मेरी बात सुन ले, हजरत मिर्जा साहब ने जब मुजद्दिद होने का दावा किया था तो बैत नहीं ली थी, आपके बड़ों ने बैत की हुई है। शहजाद साहब, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफीट अल औरियंदी। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि मेरी बात मैंने कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर बोलने नहीं देंगे कोई तो मुश्किल नहीं बात है। कैसी होगी? आप बीच में माइक खोल लेते हैं। मैंने अर्ज की है कि जब आप मुजद्दिद का दावा पेश करते हैं वो 1882 का है, आप जो है आज लेकर उसको चल रहे हैं। हजरत मसीह अलैहि सलाम ने उस पर कोई बैत कभी किसी की नहीं ली थी। मैंने तो मुझे तो मुजद्दिद मानो और मेरी बैत करो। 1907 आपके बड़ों ने वाले बैत की हुई है हजरत मसीह अलैहि सलाम की। किस बात पे बैत की थी आपके बड़ों ने? वो पूछे अपने बड़ों की किताबें पढ़े कि उन्होंने किस बात पे बैत की ओके थी। ओके, रुकें एक मिनट। हजरत साहब ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी शख्स से टिल डेथ इस बात के ऊपर बैत लिया, आसरा पे हाथ रखा के कि मैं मजाजी जिल्ली बरूजी और जी, क्या आपने नहीं फरमाया कि मैं इमाम मेहदी हूँ, मैं नहीं यार, फिर अब आप किसे कहते हैं? जब एक शख्स ये बैत ही नहीं ले रहा अपनी नबूवत की, नबी तो नबूवत की बैत लेता है। नबी करीम ने जो लोगों से बैत ली, उन्होंने इस चीज की इस तरह बैत ली कि मैं नबी नहीं हूं, या लफ्ज ही इस्तेमाल नहीं किए कि खुद ही समझ लेना मैं नबी हूं, मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, हाफिज शेख साहब ये हवाला दें। शहादत कलमा शहादत नहीं, हवाला देना, नबियों ने जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह इस चीज की बात ली है। मिर्जा साहब ने जिंदगी में जज साहब मिर्जा साहब ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी शख्स से मरते दम तक अपने नबी होने की बात नहीं ली है, सुन नहीं ली है बात। रसूल करीम ये सवाल कर रहे हैं कि आप इस चीज की बात ली है, इसका हवाला दे दें। ये सवाल कर रहे हैं शहजाद साहब कि आप मिर्जा साहब की बैत में कैसे दाखिल हुए? नहीं मैं मिर्जा साहब की बैत में दाखिल हुआ बगैर उनको नबी माने हुए। अच्छा, आप बैत होने की बात ली है, आप हवाला बगैर नबी माने हुए। आपके बड़ों की जो बैत ली है वो बगैर आपके बड़ों की बैत मुजद्दिद होने के दावे पे नहीं ली हजरत मसीह अलैहि सलाम ने। नबी होने पे ली है, बिल्कुल नबी होने पे 1889 में जो इश्तिहार आपने हजरत साहब ने जब किसी की बात ही नहीं ली, बाद में आने वाला कौन नबी होने की बात ले सकता है? 1889 में मेरी बात सुन ले कोई हाल हंसने की क्या बात है? 1889 में जो बैत ली है, मौका दो तो मैं 1889 में जो बैत ली है उसका इश्तिहार पढ़ के देखिए आप। आमिर नजीर साहब, आपके इल्म में है कि हजरत साहब ने किसी शख्स से बतौर नबी किसी भी रंग में होने की अब बैत ली है? 1889 का इश्तिहार तो पढ़ के देख लें। और जनाब मैं आपको अल बदर अल हकम में अब लगता है रूहानी खजाइन से जो है ना वो सारे वाले खत्म हो गए हैं, अल बदर और अल हकम की तरफ जाएंगे। साहब बात नहीं, अल बदर अल हकम पे क्यों जा रहा हूँ वो सुन लें। हजरत मसीह मौऊद उस वक्त जिंदा थे, फौत नहीं हो गए हुए थे। उस वक्त की ये तहरीर है, उसमें क्या उसका जो ऊपर हेडिंग है वो क्या है? हजरत मसीह मऊद किन अल्फाज में लोगों से अपनी बैत लेते हैं, लेते थे नहीं कि जी वो तो फौत हो गए हैं, और नीचे वो अल्फाज लिखे हुए हैं और उनमें कई लफ्ज पूरी स्टेटमेंट में कई लफ्ज नबी का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੀ ਬੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ? ਅਲ ਹਕਮ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕਿਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ?
انہوں کو بھیجا جاتا مرزا صاحب کی زندگی کیا ہے کہ ان الفاظ میں بیعت لیتے ہیں؟ صاحب ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ چھپے ہیں. اب آپ یہ بتا رہے ہو اب آپ یہ بتا رہے ہو کہ 1000 دفعہ وہ لفظ چھپا ہے لیکن مرزا صاحب کی نظر سے نہیں گزرا. یار نہیں جب وہ خود بندہ لیتا ہے وہ بیعت ان الفاظ یار میں، کیا کرتے ہیں آپ؟ یہ کہا گیا کہ وہ بیعت لیتے ہیں. جب حضرت مسیح موعود ان الفاظ میں بیعت لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نبی کی بیعت لیتے تھے لیکن وہاں چھپائی میں غلطی ہو گئی ہے. یہ وہاں یہ نہیں لکھا ہوا. شیخ صاحب میری بات سنیں، وہ بیعت کن لفظوں پہ لیتے تھے، کیسے لیتے تھے، ان کے عقیدے لوگوں کو معلوم تھے. چھوڑ دیں بس، ان کو نبی مانیں، وہ سب چھوڑ دیں، ان کو نبی مان لیں بس. کن کو؟ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود جن کے الفاظ میں بیعت لیتے تھے اس میں لفظ نبی نہیں تھا لیکن آپ ان کو نبی مان لیں. نہ غصہ نہ کریں. نہیں غصہ نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے نا. ایک شخص بیعت لے رہا ہے، آپ یہ بتا رہے ہو کہ وہ جن الفاظ میں بھی بیعت لیتے تھے اس کو چھوڑیں لیکن ان کو نبی مانیں. اس میں لفظ نبی نہیں تھا لیکن بہرحال ان کو نبی تو مانے. یار احمد یہ آپ عزیز کر صاحب سکتے ہو، میں نہیں. تہن میں لاسٹ واری یہ آپ کر سکتے ہو، مرچاں لگڑیاں نے تھلے کھوتی دا بچہ ایڈا جنید ہے، ٹھیک ہے. یہی لفظ پھر میں کتے ہور کے تہنوں سارے مرچاں لگڑیاں نے. اچھا میری بات سن لیں. ٹھیک ہے اچھا چھوڑ میں دیں. کہنا اس چیز حفیظ شیخ صاحب بیٹھے سنا حفیظ شیخ صاحب میں آپ کو ایک عبارت پڑھ کے سنا میری دیتا ذات نو ہوں. تھلے سارا معاملہ بند کر لیں ذرا مائک. جٹ صاحب اپنی ماں مائک بند کر لیں ذرا. ایک منٹ جٹ صاحب سیم یہی لفظ جڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جٹ صاحب گالا نہ ایک منٹ جٹ صاحب تہاڈی اکھاں کھول گئیاں نے. جٹ صاحب مائک بند کر لیں ذرا 1 منٹ کے لیے. حفیظ شیخ صاحب میں ایک عبارت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، چھوٹی سی عبارت ہے 2 لائنوں کی، اسی سے سارا معاملہ حل ہو جائے گا. آپ مجھے صرف یہ پڑھ کے سنا دیں. آپ اگر مجھے میں سنا دیتا ہوں، میں وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. شہزاد صاحب نہیں، آپ حضرت مجھے مسیح علیہ صرف السلام فرماتے ہیں ازالہ آپ کی اوہام میں. مہربانی ہوگی، اوہو ازالہ اوہام کا سن لیں آپ کی ذرا. مہربانی ہوگی اگر ازالہ آپ وہ اوہام الفاظ پڑھ کے کی سنائیں یہ گے عبارت جن میں ہے، حضرت اسی مسیح موعود سے سارا بیعت لیتے مسئلہ تو حل ساری ہو کہانی جائے گا. ختم ہو جائے گی. حفیظ اگر آپ شیخ مجھے صرف یہ صاحب پڑھ کے مائک سنا بند دیں کر گے لیں ذرا. کہ حضرت مسیح اوہو موعود کی مائک الفاظ بند میں کر بیعت لیں ذرا. لیتے تھے، ساری بات ہی ختم ہو جائے گی. ازالہ حفیظ شیخ صاحب 1 منٹ مائک بند کر لیں ذرا. آپ میں مسیح وسلم فرماتے ہیں جب تو بعد میں آپ کو کہا کہ آپ مجھے وہ الفاظ صاحب اور دوسرے بھی موقع دے نا گل کرن دا، آپ ہی نہ کری جاؤ. جب تم نے اس خدمت کے لیے قصد کر لیا تو خدا تعالیٰ پر بھروسہ کر اور یہ کشتی ہماری آنکھوں کے روبرو اور ہماری وحی سے بنا. جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے. خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھ پر ہوگا. ازالہ اوہام اور روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 565. یہ صاف اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق آپ نے بیعت لی ہے. اور وہی کیا ہے کہ جو لوگ تجھ سے بیعت کریں گے وہ تجھ سے نہیں بلکہ خدا سے بیعت کریں گے. خدا کا ہاتھ ہوگا جو ان کے ہاتھ پر ہوگا. اب مجددیت کے لیے آپ نے بیعت لی ہی نہیں، سرے سے کھلا چھوڑا ہے لوگوں کو. مجھے مجدد ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، مگر مہدویت اور مسیحیت پر بیعت لی ہے اپنی کہ میں مہدی بھی ہوں، میں مسیح بھی ہوں. اور تب بیعت لی ہے، جب یہ دعویٰ کر دیا ہے تب بیعت لی ہے 1899 میں 1889 میں. ٹھیک ہے، یہ میں نے ازالہ اوہام کا آپ کو یہ تحریر پڑھ کے سنا دی ہے جس میں بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق آپ نے بیعت لی ہے. وہاں وحی میں کہیں نہیں لکھا کہ مجھے مجدد مانو اور میری بیعت کر لو، بس وہاں پر لکھا ہے کہ میں مسیح ہوں، میں امام مہدی ہوں. ٹھیک ہے. چلو شہزاد صاحب آئیں بائیں شائیں نہ کریں. میں نے آپ کو ایک بات کی ہے کہ حضرت مسیح موعود جن الفاظ میں بیعت لیتے تھے وہ یہاں پہ لگا دیں بڑی کر کے، باقی لوگ بھی پڑھ لیں گے اور پڑھ کے سنا دیں. تو اگر اس میں لکھا ہوا ہے نبی ہیں حضرت صاحب کسی بھی رنگ میں، میں یہاں اعلان کرتا ہوں، میں یہاں سب کے سامنے ادھر ہی الفاظ کے طور پہ آپ سے بیعت لے کے خلافت والی جماعت میں شامل ہو جاؤں. بات ختم. مجھے یہ مت بتائیں، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ اشتہار بیعت کا اشتہار ہے نا ادھر سے ثابت کرنے کی کوشش نہیں. بند کریں میری بات. شیخ صاحب ایک الفاظ پہ بیعت لیتے تھے. میرا ٹائم چل رہا ہے، آپ بند ایک کریں. منٹ ٹھہرے. وہ کس میرا ٹائم چل رہا ہے، یہ اس طرح پھر میرا ٹائم تو ضائع ہو جائے گا. میں نے یہ کہا کہ آپ جو میں نے آپ کو الفاظ بتائے ہیں کہ حضرت مسیح موعود ان الفاظوں میں اپنی بیعت لیتے ہیں ٹل ڈیتھ، وہ الفاظ یہاں لگائیں اور ان سے ثابت کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں اور تم میری بیعت میں بطور مجھے نبی قبول کرتے ہوئے میری بیعت میں داخل ہو رہے ہو. یہ دکھا دیں آپ مجھے مت بتائیں ازالہ اوہام میں یہ کہا ہے، حقیقت الوحی میں وہ کہا ہے، فلانے میں یہ کہا ہے. انہوں نے کوئی اپنے الفاظ سے نہیں کی حقیقت الوحی میں یا ازالہ اوہام میں. جزاک اللہ.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਸਿਆਲ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇतना जी समझ जी आवा अच्छा अब ये सुन लें 4 मार्च 1899 1889 में 4 मार्च को आपने फरमाया है मैं भी 2 मिनट दूंगा इन दोनों के बाद। आवाज आनी बंद हो गई। वो भाई साहब फिर 1899 में चले गए हैं। वो जो बात मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देना चाह रहे। मुझे तो पता भी नहीं था, मेरा टाइम लगाया। आप वाटर भाई आप करें बात जरा। अच्छा जी प्यारे भाई ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਵਾਟਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। हाँ जी हाँ जी, मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। बात दरअसल ये है कि अब आप तीनों और चारों ग्रुपों को ना एक बात माननी पड़ेगी कि एक तो जो है ना आपको ख़त्म नबूवत का जो अकीदा सारे ग्रुपों ने बनाया हुआ है ना, थोड़ा थोड़ा आपको मोल्ड करना पड़ेगा। ख़त्म नबूवत का मतलब है ख़त्म नबूवत, ख़त्म नबूवत का मतलब है ख़त्म नबूवत। चाहे आपने उसकी मोहर लेनी है, सील लेनी है, जो जिस तरह भी लेना है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। तस्दीक करने वाली मोहर लेना है वो भी चल सकती है, बिल्कुल नबियों की तस्दीक की है। ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ जवाब है कि कोई नहीं? सर बस 2 मिनट लूंगा, सारी सवालों का जवाब एक ਗੱਲ ਤੇ दफा ਕਰ में दे ਲੈਂਦਾ दूंगा। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। सारे सवालों का जवाब एक दफा में दे दूंगा। ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा ਪਤਾ जी, ਲੱਗੇ। दूसरी जो मोहर है का मतलब आपने मोहर वाला मतलब लेना है वो ये है कि जनाब सील ऑफ द प्रॉफिट, तमाम प्रॉफिट हुड जो है वो सील हो गया हुआ, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना कोई नया नबी आएगा, ना कोई पुराना नबी आएगा। और वफ़ात मसीह भी इसके अंदर ही आती है, लेकिन वफ़ात मसीह का जी अगला पॉइंट खत्म हो गया पहला। ਚਲੋ बस ਠੀਕ ਹੈ, याद ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ 2 ਮਿੰਟ। नहीं नहीं सर ऐ नहीं सुत्या नहीं उठिया, हुण उठ गया ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਹੋਈਏ। सर मैं बिस्तरे दे हुण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ? मैंने 1 मिनट दस मैं खाना खा रहा हूँ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਖੁਰਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ। लाहौरी को बीट करना बहुत मुश्किल है। आप 1 मिनट दें अमरजीत साहब, 1 लाहौरी ग्रोह को अमित साहब अगर आप कह के 1 मिनट दें तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ ये बता दूं कि आप ये देख लें, मैं बारहा इनको कह रहा हूँ कि हजरत मसीह मऊद जिन अकायद की बुनियाद पे अपना हलफ लेते थे, बैत लेते थे, वो बताते हैं, वो दिखाते हैं। लेकिन आप देखें जैसे ही माइक मेरा म्यूट होता है, आप अकाला हम निकालें 1800 फलाना, आप निकालें। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ, हकीम नूरुद्दीन साहब ने अजरुद्दीन अरूपी को क्यों निकाला? क्योंकि वो साबित करता था कि हजरत साहब नबी हैं। अगर हकीम नूरुद्दीन साहब और मौलाना मोहम्मद अली साहब भी इस वक्त मौजूद थे, ख्वाजा कमालुद्दीन साहब भी मौजूद थे, अगर वो भी हजरत साहब को नबी ही मानते थे जैसा कि आप भी इल्जाम लगाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है। अगर वो भी उनको नबी मानते थे तो एक तीसरा बंदा अजरुद्दीन आ गया, उसका क्या कसूर है? उसने आके कहा जी वो नबी है, तो आप उसको निकाल के जमात से बाहर कर रहे हो कि ये हमारे अकायद से मुख्तलिफ अकायद बयान कर रहे हैं, साथ उनके अल्फाज थे ये। वरना लोग नहीं थे वो ना कहते कि जी हकीम साहब तुसी आप भी नबी मानते पे हो फलां रंग च, मौलवी मोहम्मद अली पे मानदा, ख्वाजा कमालुद्दीन भी पे मानदा, मैं मान लिया तो मेरा की कसूर है? मैं अगर उत्थे हुंदा ते मैं ते कहना सी उत्थे डंगे दी चोट ते कि तुसी सारे मानी जांदे हो, मैं मान लिया, मेरा किहड़ा कसूर हो गया कि मैनूं कट दित्ता जमात चों? ਜ਼ਹੀਰੁद्दीन ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਾ? ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ कि बदर के हकम में, ये तो ये भी मान रहे हैं कि बदर और हकम में छपता था कि किन अल्फाज में बैठ लेते हैं, लेकिन अजहर साहब चूंकि बहुत मसरूफ होते थे तो उन्होंने कभी वो पढ़ा ही नहीं, उन्होंने उनकी नजर से नहीं गुजरा, उनसे छुपा के वो छाप देते थे। वरना हजरत साहब तो पहला लफ्ज ही ये कहते थे कि मुझे नबी मानना है कि नहीं मानना, अगर मेरी बात जानना है। आमर भाई अच्छा जी, मैं 1 मिनट याद लगा, मेरा मुझे मुलाजिम देंगे मेरे पास, अमरजीत मैं साहब, काफी देर तक 1 मिनट मुझे दे दें, मैं इनका जवाब दे देता हूँ, ठीक है?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ देंगे मुझे ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। हैं अमरजीत साहब शहजाद 1 मिनट देंगे मुझे जरा। आप मुझे अपने बाद वैसे लड़ाई हो जानी ना अगर वो मैं आपका सारा मुकदमा संभाल जी जी राजा साहब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये पहले मुजद्दिद मैं हैं, हुनी हज़रत ए हवाला पढ़ के तो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। नहीं मैं एक हवाला सिर्फ पढ़ांगा, कला कमा इन्हां दा हो जाएगा। रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 89। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। आमिर नजीर साहब ने भी भेजा सी। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਨਾ 13 ਜਣੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਲਾ ਨਾ ਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਹੇ ਰੋਲਾ ना पाए। जी मिर्जा साहब कह रहे हैं, देखें रूहानी खजाइन जिल्द 14 सफा 89 कह रहे हैं, इस्लाम इस हालत पर होगा कि मसीह मऊद सदी के सर पर नाजिल हो जाएगा और हकम अदल होकर आएगा और उम्मत के इख्तलाफात को दूर करेगा और सईद लोगों को बाद इख्तलाफात के कलमा पर जमा कर देगा। इस मुजद्दद के 3 नाम हैं जो हदीस सैया में बातसरी मज़कूर हैं, यानी हकम, मेहदी और मसीह। मुजद्दद के 3 नाम हैं। हाँ जी 14वीं सदी का मुजद्दद है मसीह मऊद, हाँ जी जो चले हकम, जी मेहदी और कलाकमा हो मसीह। गया। अब सुन लें अमरजीत साहब, ये अभी इन्होंने इबारत पढ़ के सुनाई है, सुन लें जरा, मुझे म्यूट कर दिया है, सुन लें। मैंने अर्ज किया है कि ये साफ पढ़ के सुनाई है इबारत जिसमें मसीह मऊद, इमाम मेहदी और मुजद्दिद का लफ्ज साफ लिखा हुआ है। हाँ, ये पहला मुजद्दिद ही मसीह मऊद है, हकम भी है, मेहदी भी ये है। पहले मुजद्दिद हैं उम्मत मुहम्मदिया में, जिनकी लोगों ने बैत भी की है और जिनके बाद खिलाफत भी जारी हुई है। और जो भी किया है तो मुजद्दिद की मुजद्दिद कोई ही खिलाफत जारी नहीं हुई है, तो मगर मुजद्दिद ये ही पहले मुजद्दिद की है। खिलाफत नहीं जारी होती, तुमने की है। मसीह ने तो मसीह मऊद ने तो खिलाफत की सब नहीं। खुद कह रहे हैं मसीह मऊद तो कहते हैं मैं 13वां खलीफा हूँ। खिलाफत में 1 मिनट पीछा रहा। 13वें के बाद फिर खलीफा 14वां माना था आता है उन्हें। कि पहला फिर शुरू से हो जाता है। देखें ये फिर बोल पड़ते हैं हम। खिलाफत बात कर लियो पहले मसीह मऊद 13वां खलीफा है। बोलने नहीं देते यार आप सबसे ये मुकदमा हल नहीं होना, ये सिर्फ मैं मेरी ही बात हल सुन ले, कर ये सकता बोलने नहीं देते। मसीह मऊद 13वां खलीफा है। सारे 14वीं बोल सदी बैठो का तो फिर मुझे मुजद्दिद है। मौका देना। कहते वही मेरी मेहदी सुनते है, जाओ, वही बस हकम बोलते है। जाएंगे। मैंने कहा है कि जरा 1 मिनट के लिए माइक से म्यूट कर ले। तो मुजद्दिद की खिलाफत नहीं होती, ये मिर्जाई खिलाफती गद्दी एक दजल है, दजल। अमरजीत साहब इनको म्यूट उसका भी करने फैसला कर लेते हैं चौहान साहब, उसका भी आज ये फैसला अब करके दखल दे रहे हैं बातों में। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ आपने ਤੁਸੀਂ। वक्त लगाया है ना 1 मिनट का, तो 1 मिनट में बात मुकम्मल कर लेते हैं हम। कौन सा आपका कोई ज्यादा वक्त ले रहे हैं जो इनको ज्यादा जल्दी है? ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਊट कर लिया, बात करें। हाँ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। सारे भाई मुझे 1 मिनट दे दें। 1 मिनट व्हाट्सएप सिर्फ मुझे बात कर लेने दें, मैं आपका और वक्त नहीं लूंगा ज्यादा। मैंने क्या नहीं समझ आई कि चौहान आपकी साहब बात 1 मिनट में खत्म हाँ हो जी जाएगी। वो लगा दिया मेरा वक्त। आमर जी समझ नहीं आई। इन्होंने सामने इबारत पढ़ के आमिर नजीर सुनाई साहब है, की समझ नहीं तो मसीह हवाला मऊद भेज भी लिखा दिया है मैं। अपने आप को, फिर वो बोल रहे हैं मसीह मऊद लिखा है आमिर नजीर साहब इबारत में और इमाम मेहदी लिखा है। अब ये दोनों स्टेटस के साथ हदीस में लफ्ज मौजूद हैं कि वो नबीउल्लाह ईसा इब्ने मरियम, नबीउल्लाह ईसा इब्ने मरियम मेरी उम्मत में आएगा, तो साफ लिखा मुजद्दिद हुआ की है। हैसियत से नबी और रसूल है ना, ओहो, वो नबी फिर और वही मुजद्दिद बात की बीच में बोल रहे हैं, इनको बंद करें जरा। चौहान साहब म्यूट अब जो है ये पहले मुजद्दद हैं जिनका ये नजरिया पेश कर रहे हैं। पहले मुजद्दद हैं उम्मत में हुए कि जिनकी खिलाफत भी बाद में जारी हुई, जिन्होंने बैत भी ली है। पहले किसी मुजद्दद की उन्होंने बैत लाजमी नहीं की, मुजद्दद ने खुद। तो ये पहले और पहले मुजद्दद किसी हैं। मुजद्दिद के बाद कोई मिर्जाई इस तरह के आए नहीं ना, ये मिर्जाइयत ने खिलाफत जारी की है। मिर्जा साहब ने तो की नहीं। ना लफ्ज इस्तेमाल करो। मिर्जा साहब तो कह रहे हैं मैं 13वां खलीफा हूँ। चौहान साहब ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾ ਕਮਾ ਕਿਹਦਾ ਕਲਾ ਕਮਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਹਦਾ मिर्जाइयत दा कला कमा, मिर्जाई खिलाफती गद्दी दा कला कमा। मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं 14वीं सदी का मुजद्दद हाँ। 14वीं सदी का मुजद्दद कोई हकम मेहदी मसीह कहा गया है, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। ਇਹ ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜੋ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ? इससे मुराद है कि मिर्जा साहब मुजद्दद थे, वो कोई उनके बाद खिलाफत जारी ਪਤਾ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, इन्होंने दजल ਕੀ किया। ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मिर्जा साहब तो मुजद्दद थे 14वीं सदी के, 12 उनसे पहले गुजर चुके हैं। ਯਾਨੀ आमिर साहब, ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। आमिर साहब मैं इसको साबित कर सकता हूँ, मुझे 5 मिनट लगेंगे पर
ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਲੋ। अब कोई बंदा बीच में बोलेगा नहीं। ठीक हो गया। हो गया जी। लो जी पहला पॉइंट लो जी कि ख़त्म नबूवत जो है वो रसूल पाक पे हो चुकी हुई है। ठीक है, अपने तमाम मानी और यार कमाल। खत्म नबूवत साडा सवाल ही नहीं है। और सर जी चलो तो सही, ये स्टेप है 5 सवाल ये स्टेप। भी मिर्जा साहब दा नबूवत दा दावा है कि मुजद्ददियत दा ते महदूदियत दा। ये भी आ रहा है बीच में ही, ये भी बीच सारा। में नहीं, गल ये है मौजूद है। और भाईजान मैं लंबी बात वैसे ही नहीं करता। ठीक है जी। अच्छा जी, लो जी आप सुन लो गौर से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत ख़त्म है, जो हज़रत आदम से शुरू हुई थी और जो आके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हुई है। दीन तकमील हो गया हुआ है, ना कोई पुराना नबी आना है ना कोई नया नबी आना है। ये वाली बात भी याद रख लें। वो तस्दीक करने वाला सिलसिला या मोहर नबूवत जो है आप दोनों माने लेके आगे चल सकती हैं, लेकिन जो नबूवत है वो अपने असल रंग में बंद हो चुकी हुई है। वही का सिलसिला जो है, जो वही वलायत आप उसको कह लें या अल्लाह ताला से मुकालमा कह लें, ये बिल्कुल साबित है। और बड़े बड़े अल्लामा इसहाक, मौलवी इसहाक साहब के जैसे लोग भी इस बात को मानते हैं, जिन पर कादियानी होने का भी ठप्पा लगा है। ठीक है जी। और यही वही वलायत है, और अगर इसकी कसरत होए किसी इंसान के ऊपर तो इसका नाम हज़रत मसीह मऊद ने नबूवत रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुहद्दिसियत जो है ना वो इससे लोअर का लेवल है। वो कशफ इल्हाम रोया वक्ती तौर पर, उसमें बहुत मामूली से कशफ, मामूली इल्हाम, मामूली रोया, और उनका जो म्यार होता है ना वो थोड़ा सा नीचे है, और उनकी कसरत भी नहीं है मुहद्दिसियत में, लेकिन वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही पाए जाते हैं। लेकिन जो इल्हाम वही और जो लेवल ऑफ वही और वलायत उनके ऊपर हो रही है, उसकी कसरत का नाम उन्होंने नबूवत रखा है। नंबर 3 4 पॉइंट ये है कि हज़रत मसीह मऊद ने अपने आप को अपने लिटरेचर में जा बजा जगह जगह नबी लिखा हुआ है। उनके बेटे के लिटरेचर को छोड़ दें, उनके अपने लिटरेचर में भी बिल्कुल उन्होंने अपने आप का लिए नबी का लफ्ज़ खुल के इस्तेमाल किया हुआ है। और जब वो पूछा जाता है तो तब ये बताते हैं कि वो ज़िल्ली हैं, वो ब्रूज़ी हैं, वो गैर हकीकी हैं, वो गैर मुस्तकिल हैं, वो इस्तिलाही हैं, वो तमसीली हैं। तो ये जो मजमून है ना, ये इस तरह का मजमून है। और ये मैंने भी चश्मा मार्फत, एक गलती का अजाला वहाम 2-3 जगहों से मिलकर ही ये अपना नतीजा अखज़ किया है। तो अब हफीज़ से साहब अगर कहें कि वो बिल्कुल भी नबी नहीं है और उनका कोई दावा ही नहीं है, तो भाईजान उनका जगह जगह दावे हैं। एक सफ़े पे है, अगले सफ़े पे नहीं है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, फिर एक सफ़े पे है, फिर अगले सफ़े पे उसकी एक्सप्लेनेशन है। और यही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आप लोगों को बताई है। अहमदी कह रही है कि उनका फुल नबी का दावा है। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसे रंग में भी लिखा हुआ है जैसे फुल नबी ही साबित होता है। ठीक है, लेकिन आगे जाते हैं 2 सफ़े तो फिर आपको पता लग जाता है कि वो ज़िली ब्रूज़ी गैर हकीकी गैर मुस्तकिल है। तो आखिरी किताब एक गलती का इज़ाला में भी वही पता लगता है, हकीकतुल वही से भी वही पता लगता है, अल वसीयत से भी वही पता लगता है। तो फिर लड़ाई पीछे आप लोगों की क्या रह जाती है? सुभान अल्लाह। आपकी बात का क्या बोलूंगा आमिर नजीर साहब, मुझे बात बोलने का का मौका ये दें। नतीजा निकाला जाए। अब अच्छा बात का नतीजा भी ले ले आमिर नहीं साहब से। 1 मिनट, आमिर साहब का बड़ा आला सवाल है। आमिर साहब उनका जवाब बात करने देगा, पहले मेरे ज़हन से फिर बात निकल जाएगी। मेरी बात सुनिए। आपने 1 मिनट पेंसिल से लिख कर बात रखें, क्योंकि ये बड़ी ऊंची बात अब होने लगी है। आपने अभी एक पहला बात अकीदा जो हजरत मसीह मौद का है ना जी, कर जाओ ना, तुसी आके कहो जी मुझे 50 मिनट लगेंगे सारे 2 मिनट से ऊपर हो या मुझे पकड़ लेना, मैं तो अब लंबी नहीं, अब बात आपने करता ही ले नहीं। लिया, अब बाद में लीजिएगा। अब आपने ले लिया, बाद में इस तरह ना करें, दूसरों को भी मौका दें। आपने ये साबित, मेरा माइक म्यूट करना, मैं चला जाता हूँ, फिर ये कहना कि जी भाग गया फी से। नहीं हफीज साहब आप बात करें लेकिन लंबी ना करें बात। माइक तो अब मेरा 1-1 सेकंड के बाद माइक म्यूट कर देते हो तो फिर कहते हो बात करें। मैंने ये नहीं, आप नहीं करेगा, आप नहीं करेगा कोई, अब नहीं करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी ये साबित करने की कोशिश की है कि हजरत साहब ने जो उनका दावा मुजद्ददियत है वो जरा लो लेवल का है एज कम्पेयर टू दावा नबूवत। चलें जी, मैं इनकी ये बात मान लेता हूँ। अब हजरत साहब क्या कह रहे हैं कि जहां जहां मैंने अपने लिए लफ्ज नबी या रसूल इस्तेमाल किया है उससे मेरी मुराद महज मुजद्दद और मुहद्दिस है। इसका मतलब है हजरत साहब क्या कर रहे हैं, बड़े दावे को जो है वो छोटे दावे को बड़े दावे पे फौकियत दे रहे हैं। उनको तो ये कहना चाहिए कि मैंने जहां जहां अपने लिए लफ्ज मुजद्दद और मुहद्दिस इस्तेमाल किया है उससे मेरी खालिसतन मुराद नबी और रसूल है।
ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा कहे कि मैं फलां कंपनी का डायरेक्टर हूं लेकिन मुझे क्लर्क समझा जाए, और क्लर्क जो है वो उससे ऊंचा दर्जा है या नीचा दर्जा है। ये किस किस्म की इन्होंने अजीब सी बात की है, कोई मंतक इनकी बात की नहीं बनती कि हजरत साहब खुद वजाहत कर रहे हैं कि नबी और रसूल से मेरी मुराद महज मुजद्दद और मुहद्दस है। ये बता रहे हैं मुजद्दद और मुहद्दस लो लेवल का दर्जा है, मान लिया उससे लो लेवल का है, फिर हजरत साहब क्यों फोकियत दे रहे हैं उसको बड़े दर्जे के ऊपर, क्यों फोकियत दे रहे हैं? आपके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं, जो वो थे वो वही थे। नहीं है इसका जवाब। इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, वही का है। आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकते, ये बात गलत है। नहीं जी, फी साहब आप उनको जवाब देने दें। आपने इरशाद फरमाया कि एक गलती का ज़ाला उनकी आखिरी किताब है। ये भी शायद आपके आमन नज़ीर साहब सही कह रहे हैं कि आप अभी सो के उठ के आए हैं, तो अभी आपको मालूम किताब नहीं है आखिरी किताब। आपने अभी अपने जुमलों में कहा, बेशक रिकॉर्डिंग चला लें, अपनी आखिरी किताब एक गलती का ज़ाला। माफी मांग लेता हूँ, 1902 की किताब है। हाँ, तो आपने तो फरमाया कि अपनी आखिरी किताब एक गलती का ज़ाला में उन्होंने ये लिखा है। वो पहले आप अपनी मालूमात दुरुस्त करके आए, फिर बात करें, ठीक है? मैं अपनी मालूमात दुरुस्त कर लेता हूँ। बात तो ये इस है, चीज को साबित करें जो आपने कहा है कि मुहद्दस का दावा छोटा होता है और नबी का दावा बड़ा होता है, तो इस चीज की वजाहत करें कि हजरत साहब ने छोटे दावे को बड़े दावे पे फौकियत क्यों दी? उन्होंने छोटे दावे को बड़े पे फौकियत दी क्योंकि बहुत ज्यादा एक महफिल में एतराज हो रहा था, दिल्ली में एक लेक्चर था, तो उन्होंने कहा कि आपको अगर नबी के लफ्ज से इतना एतराज हो रहा है तो आप नबी की बजाय मुहद्दस का लफ्ज इस्तेमाल कर ले। ये नहीं कहा, उनके अल्फाज ये थे कि मेरी मुराद इससे ये है, ये नहीं कहा कि आप ये समझ लें लेकिन मेरी मुराद कुछ और है। उन्होंने कहा मेरी मुराद इससे महज का लफ्ज इस्तेमाल किया है। ये महज यहाँ पे बहुत बड़े माने रखता है कि मेरी इस लफ्ज नबी और रसूल से मुराद महज मुजद्दद और मुहद्दस है। ये नहीं कहा आप इसको महज मुजद्दद और मुहद्दस समझ लें, गलत यानी मत करें। वो भी आपको समझा देते हैं। बात दरअसल ये है कि एक MBBS डॉक्टर है, एक FRCS डॉक्टर है, दोनों समझें, एक MBBS मुहद्दस है, एक FRCS मुहद्दस है। दोनों मुहद्दसीन के तजर्बे और ताकत और इल्म और काबिलियत में भी फर्क है। तो मुहद्दस भी अगर वो है ना तो वो मुहद्दस आला है, ठीक है ना जी। और मुहद्दस आला जो होता है वो नबूवत के मुकाम के काफी करीब ही होता है, ठीक है। इसलिए ये मुकाम बराबर करते हैं, पहले लोअर सी उन में बराबर हो गए। अल्लाह के बंदे हमेशा ऐसे होता है। हफीज शेख तो एक ही पैदा हुआ था ना, 18 साल की उम्र में ये जिस्म मिल गया था आपको, लेकिन उसके बाद आपकी एक रूहानी और इल्मी तरक्की का सफर शुरू हुआ। जब जिस्मानी सफर खत्म हुआ तो इल्मी तरक्की का सफर और रूहानी तरक्की का सफर आखिरी सांस तक जारी रहता है, जब तक बंदा अपने अंजाम का दरवाजा नहीं देख लेता। समझ गए? वो आखिरी इंफॉर्मेशन होती है जो इंसान को मिलती है। आमिर नज़ीर साहब, आपने सुना है थोड़ी देर पहले मुहद्दस लो लेवल था, अब मुहद्दस नबूयत से ऊपर चला गया। नहीं ऊपर चला गया, अल्लाह के बंदे मेरी बात में चलाकी नहीं पहले लोअर सी बराबर कीता है, थोड़ी बात उत्ते ले जाएंगे। अच्छा, अब एक आखिरी बात ये, एक गलती का इजाला किताब किसी बंदे ने पढ़ी हुई है इस महफिल में बैठे हुए? जी मैंने पढ़ी। हाँ, जिस बंदे ने भी वो किताब पढ़ी हुई है ना, अगर उसने पेपर वर्जन उसका पढ़ा हुआ है ना, तो यकीन मानो कि 10 सब वो छोटी सी किताब पढ़ते हुए ना बंदे को 10 दफा पढ़नी पड़ती है। एक जुमला कह रहे शाहरुख खान, जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है। अब ये फैसला कर लेंगे जाहिल मुखालिफ कौन है। फिर ये कहा है साहब ने, वो भी कर लेते हैं हफीज साहब, मेरी तरफ ये इल्जाम लगाते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है। उसमें 4-5 मजमून आ जाते हैं और कई मजमून इतने टेढ़े हैं कि रोक के अपने दिल को समझाना पड़ जाता है कि यार ये क्या लिख छोड़ा इन्होंने। फिर बंदा 15 मिनट उसकी तवील करता है बैठ के और अगले स्टेप पे जाता है। समझ नहीं आई ऐ मनो, थानू समझ नहीं आई। और तो भाई मैंने वो अपने आप को, हम तो सर मैंने वो किताब 100 दफा पढ़ी। अगर हम उनको नबी मानते होते तो हम भी कहते हैं हम भी जाहिल मुखालिफ हैं। जाहिल मुखालिफ मेरी तरफ ये बात मंसूब करते हैं कि मैंने दावा नबूवत किया है। कौन करता है मंसूब कि उनका दावा नबूवत है? लाहौरी जाहिल मुखालिफ। शेख साहब, वहां पर ये बात नहीं हो रही कि दावा नबूवत के, वहां पर वो कह रहे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के ये लोग कहते हैं कि अकेला दावा नबूवत किया है, यानी कि मैं कोई शरई नबी हूँ या मैं नबी हूँ हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम से अलहदा।
یہ آپ پیش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کو گڑبڑ کر دیتے ہیں پکڑ کے. یہ جو ابھی محترم نے بات کی ہے کہ یہاں پر کسی نے غلطی کا ادالہ پڑھی ہے تو میں نے الف سے لے کے یا تک پڑھی ہے, بلکہ اس کا جواب بھی لکھا ہے. ہندوستان میں میں نے غلطی کا ادالہ کا جواب بھی لکھا ہے. غلطی کا ادالہ یا قادیانی مغالطے میرا صرف ہمارے ایک سیکنڈ کے لیے میوٹ لگا لیں حفیظ شیخ صاحب. حضرت مسیح علیہ السلام کی جتنی بھی مخالفت ہوئی ہے نا ہندوستان میں, وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی. وہ کہتے تھے کہ اللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے. میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں آپ سے بار بار کہ وہاں پر صرف یہی مخالفت کا ذکر کر رہے ہیں حضور, کہ میری مخالفت ہی بتائے گی کہ اس لیے کہ دعویٰ نبوت کرتی ہے, مخالفت شروع کر دو. کہ میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے. اچھا مجھے حفیظ صاحب کو جواب دینے دیں. حفیظ صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں. حفیظ صاحب کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود جو ہے وہ صاحب کشف و الہام ہے؟ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود پہ کشف الہام رویات جاری تھا, کثرت سے جاری تھا؟ اب آپ نے یہ والی بات ان کے لٹریچر سے ہی پڑھی ہوئی ہے کہ اسی کثرت کا نام انہوں نے نبوت رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وحی ولایت ہے, اور ایکسپلین کیا کہ میرے پہ جبرائیل کوئی بھی وحی نہیں لے کے آتا کہ میں نبی ہوں. انہوں نے کہا یہ کشف الہام وحی ولایت ہیں. بالکل انہوں نے نہیں کہا کہ جبرائیل امین لے کے آتا ہے اور وحی نبوت ہیں. یہ وہ کہتے ہیں جو وحی جبرائیل لائے گا وہ نبی پہ آئے گی, میرے پہ آنے والی وحی یا کشف جو ہے وہ محض وحی ولایت ہے. بالکل مت ظلم کریں کہ ان کو زبردستی نبی ثابت کرنا ہے. وہی ولایت ہے نا, بس یہاں تک تو آئے ہیں نا. وہ وحی ولایت کی کثرت تھی ان کے پاس کہ وحی ولایت کی فقدان تھا؟ یار جب فقدان ہو یا کثرت ہو, میں بتاتا ہوں, اس سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ وہ نبی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی ولایت. مجھے آپ کی جو بات سمجھ آ رہی ہے نا, مجھے آپ کی جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اگر ان کو 2 وحی ولایت آئی ہیں تب تو وہ ولی ہیں, لیکن اگر ان کو 1000 وحی ولایت آئی ہیں پھر وہ نبی ہیں. پھر میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. حفیظ شیخ صاحب یہ الہام حضور کا ہے کہ نہیں, یہ انی ملفوظات میں ہے ہوں کہ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کس کو فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے الہام کیا ہے کہ میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں. بات کون ہے رسول جہاں پر؟ گل سنو, حضور نے اپنی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو میرا رسول ہے, میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. بالکل مرزا صاحب انی ما رسول مجدد کی حیثیت سے وہ رسول اور نبی تھے. یہی وہ کہہ رہے ہیں رسول کا مطلب بھیجا ہوا, نبی کا مطلب وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا. تو وہ رسول اور نبی مجدد کی حیثیت ویسے رسول مانے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ویسے رسول مانے. پھر یہ جو نہیں مانتے کر رہے ہو, حضرت صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مثال دیتی ہے کہ اگر ایک بادشاہ اس وجہ سے بادشاہ ہے کہ اس کے پاس درم ہے, اس کی جیب میں درم ہے اور وہ بادشاہ ہے, تمہاری جیب میں اگر 1 درم آ گیا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم بھی بادشاہ ہو. یہ انہوں نے مثال دی ہے وحیوں سے کہ اگر نبی کے پاس وحی آتی ہے تو وہ نبی ہوتا ہے. تیرے پاس ایک اللہ کا وحی آ گئی ہے یا الہام آ گیا تو تو بھی نبی ہو گیا. یہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ خدا را مینوں یہ نہ سمجھو کہ اگر میرے کو 4 وحیاں آ گئی ہیں 1000 آ گئی ہیں تو میں بھی نبی ہو گیا. اس تو زیادہ تسی کی چاہتے ہو, تانوں کیڑا حوالہ بندہ دے تے کیڑی گل کرے تہاڈے. یار آخری پوائنٹ تو آپ نے بھول بات یہ ہے کہ دیکھیں واٹر صاحب حفیظ شیخ صاحب آپ سے وفات ہوئی ہے نا, نہیں معاملہ اسی پہ حل کر بات لیتے ہیں. سنیں, جب مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے, اس حدیث کو جب مانتے مرزا ہیں کہ صاحب کی نہیں, جو وفات مسلم کی حدیث ہے 73 مرزائی اور مرزائی شیخ صاحب, آپ 73 کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ جب مرزا صاحب کی وفات ہوئی ہے اس وقت مرزا محمود بھی موجود تھا اور حکیم نور الدین بھی موجود تھا. انہوں نے اس کی مرزا صاحب کی قبر پہ کتبہ کیا لگایا؟ مجدد وقت. تو اس وقت کیونکہ ان کا دعویٰ یہی تھا مجدد وقت. مجدد وقت کی حیثیت سے وہ مہدی بھی تھے. مسیح موعود لکھا ہوا ہے, چینج کر دیا ہے وہ دجل کر کے چینج کر دیا. تو مسیح موعود بالکل چینج نہیں کیا, غلط بات نہ کریں. او مجدد مسیح موعود ہے, یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. وہی ہے طارق چوہان بھائی یہ بتا دیں مجدد ہی مسیح موعود ہے, مجدد ہی حاکم ہے.
میں بتاتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حضرت مسیح موعود آپ کی اطاعت میں ہوں. حضرت مسیح موعود کا خطبہ ہے. حضرت مسیح موعود کی قبر کا جو پہلا خطبہ تھا اس کے الفاظ تھے رئیس قادیان مرزا غلام احمد مجدد 7 دہم مجدد تھے 26 مئی 1908. یہ الفاظ ساری جماعت کا اس بات پہ اجماع تھا. احمد مجدد 7 دہم یہ حکیم نور الدین صاحب کا لکھا ہوا خطبہ تھا. تصویر دکھائیں مجھے, خلیفہ ثانی نے تصویر دکھائیں کوئی مجھے. ہاں اس وقت میرے پاس آئی فون تھا, میرے پاس اس وقت آئی فون موجود تھا. تصویر دکھائیں اس ویلے تے ہر بندے دے جیب چ کیمرہ ہوندا سی. اور جناب ہمارے پاس تو تصویر بھائی بات سنو, وہی خطبہ بات سنو, کر رہے ہیں کہ نہیں جی میری بات سنیں. مولانا محمد علی, میری بات سنیں. مولانا محمد علی, خواجہ کمال الدین, آپ منہ کی باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہماری باتیں مان لو. کتبہ دیکھا ہوا, انہوں نے کتبہ دیکھا نہیں ہوا. حفیظ شیخ صاحب ایک منٹ مجھے ایک تحریر یہ کس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ تصویر دکھائیں, تصویر دکھائیں. پڑھ لینے دیں مرزا صاحب کی ایک محمد علی جو تھا, محمد علی سے موجود نہیں تھا کہ بتا کی تکمیل ہوئی ہے. سے ایک غلطی کے ازالہ کتاب میں سے مرزا پھر صاحب چلے گئے غلطی کا ازالہ, پھر چلے گئے مڑ توڑ کے غلطی کا ازالہ ہے, غلطی کا ازالہ. میں نے بتا دیا ہے غلطی کا ازالہ. میں انہوں نے کہا کہ جاہل مخالف میری طرف یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں نے دعویٰ نبوت کیا ہے. اور کیا چاہیے غلطی کا ازالہ سے؟ میرے لیے زمین میں بھی غلطی کا ازالہ, یہ غلطی کا ازالہ اور حضرت عیسیٰ یہ غلطی کا ازالہ میں حضرت صاحب نے آپ لوگوں کو پتہ صاف کر دیا. 5ویں گیئر میں گڈی ڈال دی ہے. ایک منٹ مجھے والا پڑھ لینے دیں یار, ایک منٹ ٹھہر جاؤ. حضرت صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ میں یہ کہہ کے کہ جاہل مخالف میری طرف یہ الزام لگاتے ہیں کہ میں دعویٰ, میرا دعویٰ نبوت ہے. ایک منٹ چپ کریں میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں, میرے لیے میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں. یار. آپ لوگ نے کہیں پہنچ نہیں سکو گے. نہیں, میں نے جواب دینا. ایک غلطی کا ازالہ, ایک غلطی کا ازالے کی اس تحریر کا جواب دیں کہ جاہل مخالف میری طرف الزام لگاتے ہیں کہ میرا دعویٰ نبوت ہے. میرا ایسا کوئی دعویٰ نہیں. بات کریں بھائی, باری باری بات کریں. کرے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا. میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا جیسا کہ وہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا ہے. کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے, کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں. اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے, صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نبی نہیں ہوں, اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں, مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدی سے باطنی فیوز حاصل کر کے اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے. رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا, بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا. تو پھر جاہل مخالف کیوں کہہ دیا جنہوں نے آپ کو نبی مانا؟ جی, ان کو اس لیے کہا کہ وہ اگر ازالہ ہم کا صفحہ نمبر 3 پڑھیں گے نا, صفحہ نمبر 3 میں حضرت مسیح موعود نے وضاحت کی ہے کہ جن الفاظوں میں نے نبی کہا ہے اس سے وہ اس حدیث کے مطابق ہے. 114 نمبر حدیث کے مطابق اس کو مسیح موعود کہا گیا ہے, اس کو مسیح موعود کہا گیا ہے. پہلے ہے یا یہ عامر صاحب, آپ نے شاہ رخ خان کی فلم ڈر دیکھی ہوئی ہے؟ ڈر نہیں دیکھی؟ وہ آپ کے متعلق ہی کہا کہ انہوں نے میری بات سمجھنے میں جلدی کی اور اس کو غلط سمجھا. 5 منٹ دیکھیں یہ جاہل اور جھوٹے ہیں کہا. حضرت صاحب نے کہا یہ جھوٹے ہیں جنہوں نے میری بات کو غلط سمجھا اور مجھے نبی سمجھا. میں نے ان کو نہیں کہا میں نبی ہوں. اچھا, حضرت مسیح محمد کے پاس رہ گئی, میرا نفس بیچ میں سے نکل گیا. شیخ صاحب حقیقت الوحی کا ہی حوالہ سن لیں. نکل گیا. یہ سن لیں ذرا حوالہ. کی بات سنتے ہیں. احمد جی صاحب کو یہ حوالہ پتہ ہے, یہ سن لیں. حضرت مسیح علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں, اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسل رکھا ہے, کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے, خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہ السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے, اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں. میں آدم ہوں, میں شیس ہوں, میں نوح ہوں, میں ابراہیم ہوں, میں اسحاق ہوں, میں اسماعیل ہوں, میں یعقوب ہوں, میں یوسف ہوں, میں موسیٰ ہوں, میں داؤد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مظہر اتم ہوں, یعنی ذلی طور پر محمد اور احمد بھی ہوں. بالکل, یہ آپ نے حقیقت الوحی میں فرمایا ہے. تو یہ نبی اور مرسل نہیں تو کون ہے؟
मुजद्दिद वक्त है सिर्फ। हकीकतुल वही में फरमाया है कि इस शख्स के दावे को आज 25 साल गुजर गए हैं मुजद्दिदियत के, और मेरे मुकाबले में और कोई शख्स नहीं आया जिसने ये दावा किया। यही तहरीर पढ़ के अहमद नजीर साहब लोगों को बार बार मुतवज्जे करते हैं कि मिर्जा साहब ने बड़े दावे किए हुए हैं। आप इस दावे को कैसे झुठला सकते हैं? मिर्जा साहब मुजद्दिद भी थे। अहमद नजीर साहब से पूछ लें कि हजरत मसीह मौऊद का क्या दावा है। तमाम बातों की आखिरी बात, हजरत साहब ने कभी भी किसी रंग में नबी होने का दावा नहीं किया। बात खत्म। दावा को समझते हो? दावा क्या है? मुजद्दिद नहीं होता? क्या नबी मुजद्दिद नहीं होता? हजरत साहब ने कहा है कि मेरे दावा नबूवत को 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। मुजद्दिद के दावे को तो उन्होंने 15 साल, 20 साल, 25 साल मेरी बात सुने, इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे बहुत फर्क पड़ता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कि मेरी उम्मत में जो इमाम मेहदी और मुजद्दिद होगा वो एक ही वजूद का नाम होगा। हजरत साहब नबी नहीं थे किसी भी रंग में। बात खत्म। क्या आपकी गलत फहमी है, क्या आपकी गलत फहमी इसका है। जवाब तो मुझे करें, देना आपके दो बड़ों यार। को भी गलती लगी थी, आपको भी गलती लग रही है। ओ शुक्र किया ये बंदा भाग गया। बंदा भाग नहीं गया यार। बात दरअसल ये है कि आप लोग ना कोई भी बात और कोई मजमून ना परवान चढ़ने नहीं देते। वो आप सारे ऐसे बोलना शुरू हो जाते हो कि जनाब अली आज ही सारा मुकदमा हल करके जाना है। अगर आज सारा मुकदमा हल करना है तो पेपर पेंसिल लेकर बैठो, एक एक पॉइंट लिखो, ठीक है? अपने सारी उस पॉइंट पर बात करके उस पॉइंट को लॉक करो, फिर अगले पॉइंट पर जाओ। 5 पॉइंट है कम से कम इसके खत्म नबूवत को समझने के। जिसने वो 5 पॉइंट मिस करने हैं वो ना अहमदी पे है पूरा, ना वो लाहौरी जमात का पूरा है, और ना ही वो सुन्नी है। मैं उन जवाब की अर्ज करा तो सारी गुफ्तगू को बात करनी बेइज्जती कर सकते हैं, आपके पास खुला मौका है। क्या कर सकते हैं? बेइज्जती कर सकते हैं, आपके पास खुला मौका है। नहीं, ये बेइज्जती वाली बात नहीं है, ये हकीकत है जो मैं बयान करने लगा हूँ कि आपने बात सुनी सब लोगों ने। जनाब लुकमान साई साहब की, और उन्होंने फरमाया कि देखें मिर्ज़ा साहब ने कैसे अच्छे तरीके से समझाया है हमें कि जिस तरह बंदे का साया होता है ऐसे जिल है, ऐसे नबी का भी एक साया होता है, जिल है। देखिए इससे अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है? ठीक, ये समझ आई थोड़ी सी। तो फिर शेख साहब ने कहा कि देखिए मिर्ज़ा साहब ने यूँ समझाया है कि बादशाह की जेब में अशरफियाँ हो, अगर किसी बंदे के जेब में एक अशरफी आ जाए तो वो बादशाह तो नहीं बन जाता। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से समझा दिया मिर्ज़ा साहब ने। लो जी, प्रोग्राम अद्धा बढ़ गया। फिर आए जनाब तारिक चौहान साहब, उन्होंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं ऐसा हवाला दूंगा कि इन सब का कला कमा हो जाएगा। मैंने कहा चलो जी, ये बंदा सियाना आया है, ये कला कमा कर देगा, कोई बात निकालेगा। लो जी, तारिक चौहान साहब ने कोई हवाला दिया, उसका तो पता ही नहीं लगा कि तारिक चौहान साहब क्या कहना चाह रहे थे, तो पेड़ पल्ले नहीं पड़ी बात। अल मुख्तसर बात ये कि मिर्ज़ा साहब की ही तहरीरें आप पढ़ रहे हैं, मिर्ज़ा साहब की ही तहरीरें वो पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने इस तरीके से समझाया है, वो कह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब ने उस तरीके से समझाया है। भाई ये जो लोग हैं इनको कोई पता चला है कि मिर्ज़ा साहब ने किस तरीके से समझाया है? मिर्ज़ा साहब ने उर्दू में तहरीरें लिखी हैं। चले होता है ट्रांसलेशन करते हुए आपके हम जुबान ना हो तो आपको समझने में दिक्कत आए, तो हो सकता है कि भाई क्योंकि वो दूसरी जुबान में बात कर रहे थे तो ट्रांसलेशन करते हुए बात पूरी अपना मफहूम बयान नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ तो अपनी जुबान आपकी और मेरी और इनकी सबकी ये मादरी जुबान है, उसमें वो बात कर रहे हैं। लेकिन उस बात में भी दोनों तीनों पार्टियां अपने अपने वो लेकर वो तहरीरें बैठी हुई हैं, और दोनों का ये दावा है कि मिर्ज़ा साहब ये कहना चाह रहे हैं, मिर्ज़ा साहब ये कहना चाह रहे हैं, कुछ पेड़ पल्ले नहीं पड़ रहा। नतीजा क्या है? नतीजा इसका ये है मेरे भाइयों कि खुद मिर्ज़ा साहब की अपनी तहरीरों में इतना तनाकुज़ है, इतना तजाद है। अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं कि मैं किसी बुग़्ज़ और हसद की बिना पर यह बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह को गवाह करके कह रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं कि मिर्ज़ा साहब की बातों में इतना तजाद है, इतना तनाकुज़ है। एक लाइन में दावा किया हुआ, अगली लाइन में इनकार किया हुआ है। एक सफ़े पे दावा किया हुआ, अगले सफ़े पे इनकार किया हुआ। कोई बंदा उनकी इन तहरीरों से कोई एक नतीजा निकाले, दूसरा बंदा कोई दूसरा नतीजा निकाले, क़यामत की पहली तारीख तक ये जंग खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें भी वो वही मानी निकल रहा है जो दूसरा निकाल रहा है, और इसमें भी यही मानी निकाल रहा है जो ये मानी निकाल रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त है।
क्योंकि उर्दू में साफ अल्फाज लिखे हुए हैं। तो असल हकीकत ये है कि उनकी लेकिन एक बात और को- मजेदार बात भी है आमिर साहब कि वो दोनों जो नतीजा निकाल के इकट्ठे होते हैं तो जब तीसरी लाइन आती है तो उसमें कुछ और लिखा हुआ। हाँ हाँ, तीसरी में कुछ और ही लिखा हुआ है, वही तो मैं कह रहा हूँ और ना। चौथी में जब राजा जवेद आएगा तो ये हम तीनों से बातें सारी समझ बैठेगा तो हम चौथी पढ़ेंगे तो हम चारों के दिमाग कहीं और चले जाएंगे क्योंकि वो कुछ और चीज होएगी। वाटर साहब, अल्लाह के लिए दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये बंदे का ये दावा था कि उम्मत जो है वो गुमराही में पड़ गई है, मैं इनके दीन की तजदीद करने लगा, रेनोवेशन करने लगा हूँ, हाँ जी। इसमें इस्लाहात करने लगा हूँ, यानी गुमराही से इनको निकालने लगा हूँ, और मैं हाँ जी। इनको वजाहत करने लगा हूँ, दीन की वजाहत पेश करने लगा हूँ कि असल दीन की रूह इस बात में है, और दीन या शरीयत इस्लामिया क्या कहना चाहती है। यार ये सोचें कि जिस बंदे की अपनी बात अपने मानने वालों को अपनी लिखी हुई जुबान में वो समझ नहीं आ रही, वो दीन इस्लाम की क्या तशरीह करेगा, वो नबी पाक की शरीयत की क्या तशरीह करेगा। 14 सदियों के बाद अरबी में वो दीन आया, 14 सदियां पहले आया, और उस मुल्क में आया जिसकी हमारे साथ ना तहजीब मिलती है, ना इलाका मिलता है, ना जुबान मिलती है। तो उनकी जुबान में आई हुई शरीयत, अरब की आई हुई, वो आप क्या तशरीह करेंगे। आपको तो अपनी जुबान में बात समझानी नहीं आ रही कि आपके अपने मुरीद हैं, वो 3 बंदे हैं, तीनों अपनी अपनी तहरीरें लेके बैठे हुए हैं। बड़ी वो कहते प्यारी हैं बात ये- की है, बड़ी वो प्यारी बात कहते हैं ये दुरुस्त है, वो कहते हैं ये दुरुस्त है, ये कहते हैं ये दुरुस्त है। बड़ी प्यारी बात की है। बात मेरे प्यारे भाई यहाँ पे ये आ जाती है कि मजमून बदलना नहीं मैं चाह रहा, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं कि वो अरबी लोग भी अगर सारे कुरान शरीफ को समझ सकते होते ना, उनके साथ भी यही मसाइल थे, तो सारे अरबी भी एक ही होते। मोटी सी बात करूंगा कि अरबी में भी शिया सुन्नी वाबी और सब फिरके भरे पड़े हैं। हाँ, तो इसका मैं जवाब देता हूँ। उनको भी अरबियों को भी अरबी बिल्कुल सीधी समझ नहीं आती, लेकिन हमारा भी मजमून नहीं है ये। आप बात ठीक चला रहे थे। मैं आपको ये वाली बात बताता हूँ कि ना, ये अगर आप मुझे इजाजत दोगे तो मैं बात करूंगा ये मजमून के। क्लियर हो जाना जी, जो नुक्ता भी आपने बयान किया है कि मुसलमानों के अंदर भी फिरके तो बने ना। हाँ जी, नबी पाक चाहे अरबी हो। तो साफ थी, सराहत थी, तो फिर फिरके क्यों बने, शिया सुन्नी क्यों बने, यही आपका सवाल है ना। मुझे ये तो क्लियर करने दें, मुझे मौका दे दें। गुजारिश ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की पहली तो बात यह है कि अपने हाथ की लिखी हुई कोई भी तहरीर इस दुनिया में नहीं, अगर होती तो काश होती, दुनिया में मुसलमानों के अंदर कोई इख्तिलाफ होता ही नहीं। पहली तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो बातें सहाबा के बीच में पहुंची हैं, ताबईन के बीच में पहुंची हैं, तबा ताबईन के दौर में पहुंची हैं, कहीं पर कोई इस तरह का इख्तिलाफ था ही नहीं कि नबी पाक ये कहकर गए हैं, ये तालीम देकर गए हैं, या वो तालीम देकर गए, इस तरह का इख्तिलाफ था ही नहीं। ये जो शिया सुन्नी का इख्तिलाफ हुआ, ये कोई अकीदे का इख्तिलाफ तो था ही नहीं। आपको भी पता है कि ये सारा वाकया करबला से या उनसे पहले सैयदना उस्मान की शहादत से ये जो वाकया हुआ है, ये सारा अकीदे से तो जुड़ा हुआ है ही नहीं। ये तो इख्तिलाफ सारा हुआ है खिलाफत वगैरह और उसके ऊपर जो बने हुक्मरान बने, उस पर लड़ाई हुई है। तो वहां से फिर वो बनते 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 उसका वो मजहबी रंग बन गया है। नबी पाक की दी हुई तालीम या हाथ से लिखी हुई तालीम के बीच में भाईजान इस तरह की कोई बात थी ही नहीं कि किसी को समझ ना आए। नबी इस्लाम की नहीं थी ना। सुन लें, नबी पाक ने फतह वो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर पूछा था, लोगों क्या मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। सब लोगों ने कहा हम गवाही देते हैं, बिल्कुल आपने सही है। अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचा दिया। नबी पाक का पैगाम इतना साफ, इतना निखरा हुआ पैगाम था कि भाम की गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। हाँ जी, सदियों बाद इख्तलाफात पैदा हुए हैं। नहीं सदियों बाद हुए, 50 साल भी नहीं गुजरे थे तो वाकया भाई, करबला 50 हुआ साल के पड़ा। बाद जो लड़ाई हुई वो तो अकीदे पर नहीं हुई ना, मैंने आपको बताया, वो तो हुक्मरानी पे हुई थी। हुई तो हुक्मरानी पे, लेकिन वो बाद तो में तो खिलाफत एंड पे तो हुई अकीदों पे लड़ाई। हुआ ना। हैं? एंड तो अकीदों पे हुआ ना। भाई एंड तो होता है बाद में, लेकिन वहां पर कोई नबी पाक की तहरीर पर कोई लड़ाई हो रही है। यहाँ पर आपके तहरीर पर लड़ाई नहीं हुई, लेकिन अब तहरीरें मुकम्मल बदली पड़ी हैं उसकी वजह से, सोचें बदली पड़ी हैं, नमाजों के तरीके बदले पड़े हैं। वाटर साहब, आपके मिर्जा साहब के हाथ की तहरीरें लिखी हुई हैं, अपने हाथ की लिखी हुई हैं। जी नबी पाक की तो कोई तहरीर है नहीं। जी, कि ये साहबा सारे को कोई- बंदों को आपने उतार दिया। मैंने किसी को नहीं उतारा, खुद गए, मैंने एक बंदे को भी नहीं उतारा, अल्लाह के बाद। उन सब को पता चल गया है कि ये मिर्जा साहब की ही तहरीरों में गड़बड़ है,
किसी का कसूर नहीं है। चौहान साहब आते हैं, वो आप सबका कला कमा करना चाहते हैं, आप लाहौरियों का करना चाहते हैं, लाहौरी आपका करना चाहते हैं। हकीकत यह है कि मिर्जा साहब आप सबका कला कमा कर दें। नहीं नहीं, बात ऐसी आप अगर मतलब कि मजाक के मूड में बैठे हैं तो बिल्कुल ऐसे हो सकता है। संजीदा बात में मैंने आपको कसम खा के कहा, मैं संजीदा बात कर रहा हूँ। सारी गड़बड़ मिर्जा साहब की अपनी बातों में। नहीं, बात बिल्कुल आपकी, मैं कहता हूँ कि मिर्जा साहब को समझना आसान नहीं है। मैंने इसीलिए उनके इद्दा खत्म नबूवत को 5 पॉइंट बना दिए थे। तो मैंने इनको कहा था कि मैं बता दूं, लेकिन पता है लोग बड़े बेवसाए होते हैं, समेत सारों के ही, मेरे भी। वो कहते हैं यार मेरी गल होने ही सुन लो, होने ही समझ लो, होने ही मान भी लो। ये मामला ऐसे नहीं हल होना, ये टेबल पर ही हल होएगा। भाई दुनिया का कोई ऐसा राउंड टेबल नहीं है जहां पर ये झगड़ा आपका खत्म हो सके। ये अभी हो सकता था, लेकिन ये बैठते ही नहीं है। अब हफीज शेख साहब टूट गए हैं। वाटर साहब, ये आपको पता ही नहीं है, यहाँ पर मुनाजरे हुए हैं, पता है आपको? रावलपिंडी जो मुनाजरा हुआ था इनका, यहाँ पर मुनाजरे हुए हैं, यहाँ पर लड़ाइयाँ हुई हैं, डांग सोटा चला है, कत्ल गारत हुई है, लेकिन इनके दरमियान ये इख्तलाफ जो पैदा हुआ मिर्जा साहब की अपनी तहरीरों से। वो कहते हैं तहरीरों का ये मतलब, तहरीरों का वो मतलब है, लफ्ज सामने वही है, उन्हीं लफ्जों का वो कुछ और मानी निकालते, ये कुछ और मानी, और दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त लगते हैं। क्यों? अल्फाज तो मिर्जा साहब के हैं और उर्दू में लिखे हुए हैं और वो मानी भी दे रहे हैं, तो लोग क्या करें? सच यही है कि मिर्जा साहब की अपनी तहरीरों में तनाकुस नहीं है, उसको कहते हैं कि मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। लेकिन ये लोग जो है ये कोई बंदा 3 पॉइंट मान लेता है, कोई बंदा 4 पॉइंट मान लेता है। मसला सारा ये है। और फिर उससे अगला स्टेप एक आ जाता है खिलाफत का, जिसका जो आप तारिक चौहान साहब को कह रहे थे ना, तारिक चौहान साहब से जी मुजद्दद का मुनकर जो है वो फासक है और इनका खलीफा फासक है। उनका ये डायलॉग होता है पेट कि जी मुजद्दद का मुनकर जंबा साहब अब मुजद्दद आ गए हैं, उनका जो मुनकर है वो फासक है, तो इनका मुनकर। लेकिन वो भी जो मिर्जा साहब की इतनी सराहत के साथ जो मुजद्दद के लिहाज से तहरीरें हैं ना, वो इतनी साफ हैं कि कादियानी गिरोह उनका खिलाफ है, बिल्कुल उनके खिलाफ। यानी मिर्जा साहब कहते हैं क़यामत तक मुजद्दद आते रहेंगे, और आपके खलीफा साहब कहते हैं कि क़यामत अब तो कोई मुजद्दद का मुंह भी नहीं देखेगा। साफ वजाहत है वहां पर। और मिर्जा साहब की इस बात को लेकर आपको ये तय करना ही होगा, अगर कादियानी गिरोह है, कि या तो मिर्जा साहब ने गलत कहा है, या फिर इस सदी का मुजद्दद कौन है। मिर्जा साहब को गए हुए सदी तो गुजर गई, अब अगली सदी का मुजद्दद या तो अपने खलीफा का ऐलान करा दें कि मिर्जा मसरूर मुजद्दद है, लेकिन अगर आप यह कहें कि मुजद्दद का मुंह नहीं देखेगी ये मिर्जाई कौम, ये झूठ है, ये फिर मिर्जा साहब के खिलाफ ही बात करनी है। चलो अभी आप 10-15 मिनट बात करें, मैं जरा नहा के शावर वगैरह लेके आता हूँ, तो फिर उसके बाद बाकी की बात करते हैं हो जाए। और इस पे गौर करें कि मिर्जा साहब की बातों में इतना तजाद क्यों है। सर आपने मुझे 5 मिनट बोलने का मौका नहीं दिया, मैं अब गौर क्या करूं? गौर कर करके किताबों के खुलासे बना बना के मैं आप लोगों के लिए 5 पॉइंट लाया था। वो एक पॉइंट से किसी की ना मतलब बंदे का दिल दुखना शुरू हो जाता है और वो जनाब चीखे मारने लग जाता है। प्लस सब्र हमारे बंदों में है नहीं कि किसी बंदे की वो खुद कह देना यार 5 मिनट बात सुन लें, उसके बाद समझ आए या ना आए जो मर्जी तुम्हारी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 5 मिनट कहते, मैं 25 मिनट इनको बांध के बिठा देता हूँ, फिर शेख को भी तारिक चौहान को भी, अगर आप कायल करके मेरा मुंह काला कर देना। लो जी आज कायल करके जाना है मैंने, बादशाह बंदे कायल। ये मैंने हुसैनी साहब के साथ बैठ के पॉइंट बनाए हैं 5। सैनी साहब किसी नुक्ते पे पहुंच गए ने जनाब, हम दोनों एक नुक्ते पे पहुंचे। सैनी साहब की अपनी सेंस है, हुसैनी वो जो बात करते हैं वो इन सब से अलग है। वो क्या है? मतलब मेरा कहने का ये है कि वो उनकी अपनी एक सेंस है। नहीं, हुसैनी साहब आजकल हजरत ईसा के अब्बू ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही है। तो कहने का मतलब ये वो है, वाली साइंस मैं उनकी समझता हूँ। वो कोई मिर्जा साहब की तहरीरों ने, किताबों ने मिर्जा साहब के पैरोकारों को फायदे से ज्यादा नुकसान दिया, अल्लाह को गवाह करके कहता हूं। आपकी बात से ना, जब आप डेरोगेशन में जाते हैं ना, तो फिर मैं आपकी बात से इनकार करता हूँ, यानी कि तज़ीक के पे जाते हैं। नहीं, मैं संजीदगी से, लेकिन जब आप संजीदगी पे जाते हैं तो मैं आपके साथ इस बात पे एग्री करता हूँ कि एक मौलाना साहब हैं, दरियाबंदी साहब,
उनका नाम मुझे भूल गया, जो हजरत मिर्जा गुलाम अहमद की फारसी वाली नज़म भी बड़ी पढ़ते हैं और उनकी तौहीद के लिटरेचर की बड़ी तारीफ करते हैं, आपने भी सुनी। हाँ जी, तो वो जनाब अली वो मुझे कहते, वो बता रहे थे उनका यूट्यूब पे कि मैं बीमार हो गया मिर्जा साहब की तहरीरें पढ़ के, तो मेरे घर वालों ने, बुजुर्गों ने और समझदार बंदों ने मुझे कहा कि तुमने 3 महीने तक किसी किताब को हाथ नहीं लगाना। तो वो आपकी बात सही है कि मजमून में ऐसे उतार चढ़ाव आता है कि बंदा कहता है यार ये मैं इतना जो समझ के बैठा हूँ ये अंडा हो गया, बिल्कुल जीरो हो जाता है। हाँ, सारी पिछली समझ बढ़ जाती है। अगले सफे में जाए, पिछला सफा जो है। हाँ जी, तो वही मैं सारों लोगों को कहता हूँ कि एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी डर, तो उसका अब शुरू का सीन था कि शाहरुख खान ना एक बिल्डिंग की ना बॉम्बे की फुल टैंकी पे चढ़ा होता है और आंखें बंद करके ना, आपको वो देखना पड़ेगा सीन, अपनी बेगम के साथ बैठ के, वो देखिए मैंने फिल्म, मुझे याद है वो ट्रेन वो जिसमें वो ट्रेन के ऊपर भी चढ़ता है, जिसमें वो क्या, जिसका बड़ा मशहूर गाना है तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तो उसमें वो टैंकी के बिल्डिंग की दीवार के ऊपर चल रहा होता है, आंखें बंद की होती हैं, हाथ में गुलाब का फूल पकड़ा होता है और एक दफा कहता है तुम मेरी हो, तुम मेरी नहीं हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी नहीं हो। और जनाब अली जब बिल्डिंग की दीवार खत्म हो जाती है और कोई 100 मंजिलों से वो गिरने वाला होता है, तो एक पत्ती बाकी बच जाती है और उस पर कहना होता है उसने कि तुम मेरी हो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मिर्जा साहब की तहरीर है। आप यकीन करें कि जिस बंदे के पास सब्र टेम्परामेंट नहीं ना, वो 2-3 तो किताबें फाड़ सकता है। हाँ। तो मेरे साथ ये तजर्बा हुआ हुआ है, लेकिन अकीदत में हम नहीं ये वाली बात बोलते। हार नहीं सकता, खा भी सकता है, गुस्से में आके उनको चबाना शुरू कर दे। तो ऐसी कोई गल अब आप 15 सफ़ों की किताब एक गलती का ज़ाला है, उसमें 4 मौके ऐसे आते हैं कि बंदा अपना सिर पाड़ने वाला हो जाता है। हाँ, मैंने 1 दफा पढ़ी, मैंने 20 दफा पढ़ी, फिर मैंने 20 दफा उसकी ऑडियो सुनी, फिर मैंने कोई महीना छोड़ के फिर ऑडियो सुनी, फिर मत्था पकड़ के बैठ गया। तो ये लोग कह रहे हैं सारे कि बड़ी आसान है, हमने सब समझ आ गई, ये हो गया वो हो गया। और भाई असल सच ये है कि वाकई बंदा टक्कर मारने वाला हो जाता है। एक गलती का जो जाला है ना, मिर्जा साहब ने गलती का जाला करने के लिए किताब लिखी है और वो इतनी घुमन घेरी है कि वो किताब कोई बंदा इनमें से दावा नहीं कर सकता कि इस किताब में ये बात कही गई है और मुझे समझ आ गई। ऐसी पॉइंटनी दी हुई है, पॉइंटनी दी हुई है। और जब सारी पॉइंटनियां संभाली जाती हैं तो अगला जुमला पता है क्या आता है कि मैं हजरत ईसा से बेहतर नबी हूँ, मोहम्मदी ईसा जो है वो क्या कहते हैं पुराने वाले ईसा से बढ़कर है। लो जी, बंदा कहता है हुन एदी भी मैं तवील लब्बा। तो हाँ, तो ये भाई वो तहरीरें नहीं है तो जंजाल पूरा तो जंजाल। इसलिए उसके लिए बड़ा सब्र चाहिए। इसीलिए मैं ज़िया रसूल को उसकी उम्र कल पूछ रहा था, ये 20-30 साल 33 साल के बंदे को नहीं वहाँ का उनका लिटरेचर संभाल सकता। 40 साल का होएगा, फिर उसके बाद आहिस्ता 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 कुछ बाबे उसको मिलने शुरू होंगे, एक एक बात इकट्ठी करनी शुरू करेगा, फिर जाके मौजू पे पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा कभी भी नहीं। हाँ ये है कि वो पढ़ के सब्र करना शुरू कर देगा कि फिर ये ऐसे ही होगा, फिर आगे जाएगा कहेगा फिर ये भी ऐसे ही होगा, ये भी ठीक होगा, वो भी बंदा ठंडा हो जाता है ना जरा। वरना ये 40 साल से ऊपर थे, मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी 40 साल से ऊपर है, आपके सारे काबरीन 40 साल ठंडे ठंडे हो गए, मिर्जा साहब की तहरीरें पढ़ते रहे हैं किसी ने। सर मैं 40 साल के बाद, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं नतीजे पे पहुंचा हूँ, क्योंकि मैंने गैर अहमदी उलमा को भी इसमें शामिल किया है। वो भी मौलाना इसहाक भी एक हद तक जाते हैं साथ साथ, फिर गांधी साहब भी एक हद तक साथ जाते हैं। तो किस नतीजे पर पहुंचे वही तो बता रहा है, लेकिन अब मैं वो तैयार होके बताऊंगा। आपके हुसैनी साहब के साथ मिलके 5 पॉइंट तैयार किए थे, वो बस आपको बताने थे, या भाइयों ने वो बात बोलने ही नहीं दी। पहुंच गए हैं ना, अगर आप किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं तो नाश्ते से ज्यादा गुस्ल से ज्यादा ये जरूरी बात है। जिंदगी का क्या पता है वहां गुसलखाने में गिर के मार जाएं। बता दें बात कौन बताएं बात। नहीं सर, वो अभी इतना टेम्पो नहीं बन रहा, वो जब बनेगा ना माहौल तो फिर मैं आपको बताऊंगा। चले आपने पूछ लिया तो अब आपको मैं बताता हूँ।
अच्छा आमिर साहब, पहला पॉइंट ये है कि ना ख़त्म नबूवत जो है ना, वो चाहे किसी बात को किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, वो शख्सी ख़त्म नबूवत हो चुकी हुई है, ठीक है। चाहे किसी ने माननी है चाहे नहीं माननी, ये उसकी अपनी मर्जी है। अब ख़त्म जहाँ पे मोहर का मकसद लिया जाता है ना, वो मोहरों की भी इन्होंने अब दो मार्केट में इसकी भी चलती हैं कि एक मोहर तस्दीक है जी, तमाम पुराने अंबिया की तस्दीक करती है, क्योंकि तौरात और उसके मानने वाले हज़रत ईसा की तस्दीक नहीं करते थे, ठीक है जी। मोहर तस्दीक भी कर देती है, तमाम पुराने नबियों की कुरान पाक तस्दीक कर देता है। अच्छा, मोहरे जो आप लोग मतलब लेते हैं कि ये सील वाली मोहर है, जैसे गवर्नमेंट लिफाफों को सील कर देती है कि अब इसको कोई खोल नहीं सकता, इसकी वो वाली मिसाल भी ली जा सकती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है ना, हमने उसको आसान करने के लिए ना कि अल्लाह ताला का इंसान के साथ कमालात नबूवत जो है ना जी, पॉइंट नंबर 2 है कि कमालात नबूवत जारी हैं। ये इसको नहीं, पहला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। पहला पॉइंट कौन सी मोहर है? अब उसमें मोहर में ये भी है कि हजरत ईसा जो पुराने नबी हैं वो भी नहीं आएंगे, ठीक है, जो और कोई नया नबी भी नहीं आएगा। बस अगर खत्म करना है, सील करना है, तो फिर पूरा सील करना है। फिर अगर मगर करके ना होता है, आप किसी नुक्ते पर पहुंचे हैं तो बगैर अगर मगर के बताएं ना। अगर मगर के जो है ना हजरत ईसा ने आना है, ना ही किसी और नबी ने आना है, ठीक है। सील और कौन सी है? सील वाली कि स्टैंप वाली? सील वाली मोहर है ना, सील स्टैंप सेम है, ठीक है। नहीं, सील और स्टैंप तो फर्क है ना। स्टैंप तो तस्दीक के लिए होती है। हाँ, सील बंद भी हो गई है ना, तो फिर सील बंद का मतलब है कि फिर सील बंद है। अगर खत्म नबूवत को मुकम्मल बंद करना है तो फिर मुकम्मल बंद है, ना पुराना ना नया। फिर अगर मगर मैं कहता हूँ फिर अगर लेके बैठ जाता तो यार कोई तो लफ्ज इस्तेमाल करना है ना। अब मैं कितने लफ्जों से, 10 लफ्जों का फिर बोझ उठा के आपके पास आऊंगा। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं तो वो नतीजा बता दें, लेकिन उसमें अगर मगर ना डालें। अच्छा। कहें कि ये मिर्जा साहब कहना चाहते अच्छा हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। जी जी, समझ आ तो गई। ना नया नबी अगर के बगैर, ना नया नबी अगर के बगैर, ना पुराना नबी अगर के बगैर, खत्म, कहानी इज ओवर, ठीक है। अगला पॉइंट, कमालात नबूवत जो है ना कि वो जारी हैं, जिसमें को आप मुबशरात भी कह सकते हैं, और मुबशरात की भी आगे 100 किस्में हैं। अगर कहते हो तो थोड़ी सी बता देता हूँ। कशफ, इल्हाम, रोया, एक बात मुझे कर लेने दें, फिर आप किस में बताइएगा। मैं कितने जाना है, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन के हैं अपने वाटर साहब दी। ये जो मोहर और ये और वो आप खत्म नबूवत का कर रहे हैं, इसका भी मुझे आप जवाब दे दें हजरत साहब के लिटरेचर से। हजरत साहब ने कहीं भी खत्म नबूवत के लिए लफ्ज मोहर इस्तेमाल किया है कि नबी करीम मोहर हैं तमाम नबियों पे? हजरत साहब ने 1000 जगह अगर लफ्ज खत्म नबूवत इस्तेमाल किया है, उसका यही मानी लिया है नबियों को खत्म करने वाला, खातमुन नबीयीन, आखिरी नबी। आप मुझे साबित करके बता दें कि हजरत साहब ने फलां जगह पे लिखा हुआ है खत्म नबूवत का मोहर है नबियों की मोहर, इसको खत्म। प्यारी बात की है। दूसरी बात यहाँ कर लेने, ठहर दें। दूसरी बात ये जो आपकी ब्राडों पे मैं जाता रहता हूँ, ये आपकी सैफी की ब्राड हो गई, नादर की ब्राड हो गई, दूसरे तीसरों की ब्राडें हो गई, यहाँ पे आप वो या बनी आदमा या वो उसकी सूरत पेश करते हो 35 नंबर, क्या मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है। क्या हजरत साहब ने अपनी नबूवत को साबित करने के लिए अपने पूरे लिटरेचर, बार बार मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, पूरे लिटरेचर में कहीं इस आयत को इस्तेमाल किया है जिससे आप उनकी नबूवत जबरदस्ती साबित करने पर तुले हुए हो? जिस शख्स का दावा नबूवत है, उस शख्स ने जब लोगों ने कहा कि तुम झूठे नबी हो या फलाने हो, तो उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सच्चा नबी हूँ, इस आयत का हवाला दिया। कौन सी वाली आयत का? नबी सदीक शहीद साले वाली का है, या बनी आदमा तुम जब तुम में रसूल आवे, तो जरा आवे खिंच के नहीं करते हो, आवे जावे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि हजरत साहब ने अपने पूरे लिटरेचर में कहीं अपनी नबूवत साबित करने के लिए इस आयत का हवाला दिया है? तो मुझे दिखाने में उनको नबी मानूंगा। दूसरी बात जो मैंने आपसे की है वो ये है कि हजरत साहब के पूरे लिटरेचर में से मुझे बता दें कि खत्म नबूवत का मतलब है नबियों की मोहर, ना कि खत्म। आप ना खातिम से, ना खातुम से, ना खातिम से,
یہ ثابت کر سکتے ہیں حضرت مسیح موعود کا. بات چلے گی حضرت مسیح موعود کی، نہ مولوی محمد علی کی نہ کسی اور خلیفہ ثانی کی، کہ مولوی محمد علی خاتم کا یہ ترجمہ کر رہا ہے تو اس لیے ہم یہ کریں گے. حضرت صاحب نے اپنے لیے یہ اس خاتم النبیین کا کیا مطلب لیا ہے اور کیا وضاحت کی ہے وہ مانی جائے گی. اچھا وہ بتا دیں کہاں کا ہے مہر، اب بتا دیں بس، اب آپ 3 لفظوں میں وہ بتا دیں پھر مضمون آگے چلے. تاکہ حضرت صاحب نے خاتم النبیین کا مطلب لیا ہے نبیوں کو ختم کرنے والا آخری نبی جس کے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت صاحب نے کہیں نہیں کہا اس کا ختم کا مطلب مہر ہے. یہ بات آپ نے مجھے حضرت صاحب کے لٹریچر سے دکھانی ہے. بالکل کہ صحیح دیکھو ہو جی گیا، حضرت صاحب کہہ رہے ہیں مہر ہے یہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح نبی بات آپ ختم ہو کر گئے، رہے ہیں. نبی آتے رہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہ یا بنی آدمہ والی آیت پڑھ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا کہ میں نبی ہوں. ٹھیک ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ اپنا پوائنٹ یہاں پہ بس آپ کلوز کر رہے ہیں. مجھے حوالہ آپ یہ نہ کیجیے گا ایک غلطی کا ازالہ میں یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت الوحی میں وہ کہہ میں رہے ہیں. کوئی حوالہ نہیں، میں آپ کی بس سٹیٹمنٹ کو لے رہا ہوں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود سے ثابت کرنا ہے، ہم نے کہیں اور سے نہیں کرنا، نہ ہی خلافت سے نہ ہی کہیں اور سے، صرف قرآن شریف اور حضرت مسیح موعود اور دینی کتابیں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں ابھی 1 منٹ ٹھہر جائیں، 1 منٹ ٹھہر. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کر دیا نا جی قرآن مجید سے، میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا ثابت آپ کریں، آپ تو اس سے کر رہے ہیں آلریڈی ثابت، وہ یا بنی و آدمہ والی آیت سے ثابت کرتے ہیں آپ، یہ تو آپ کے وہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کیا حضرت مسیح موعود نے بھی خود کو اس آیت سے نبی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اپنے پورے لٹریچر میں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. یا حضرت مسیح موعود نے کہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ لیا ہے نبیوں کی مہر؟ یہ مجھے آپ نے ان کے لٹریچر سے دکھانا ہے تاکہ میرا بھی کوئی درست ہو عقیدہ، میں بھی ٹھیک طرف آؤں. جی، نبیوں کو ختم کرنے والا نہ کوئی نیا نبی نہ کوئی پرانا نبی. ٹھیک ہو گیا؟ تو بول دیو ٹھیک ہو گیا. وہ ٹھیک ہو گیا نا، مہر بھی تو دکھانا ہے. تسی مینوں مہر دکھانا ہے جڑا تسی مہر لاندے ہو روز آ کے. اچھا بس ہو گئی نا. میں نے اس سے پہلے میں نے یہ والی بات جو آپ نے ترجمہ کیا میں نے بھی وہی ترجمہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے جی، کمالات نبوت جو ہے نا جی وہ جاری ہیں. ٹھیک ہے جی، کشف الہام، رویا، اسباب، انعام، جو بھی آپ نے کرنا ہے، القاء، ہر چیز اس میں شامل ہے اور یہ جاری ہیں. ان چیزوں کی کثرت کا نام محدثیت تک تو لوگ لیتے ہی تھے، لیکن ان چیزوں کی کثرت کا نام جو ہے وہ نبوت رکھا ہے حضرت مسیح موعود نے. ٹھیک ہے جی، اسی چیز کی کثرت کا نام انہوں نے نبوت رکھا ہے. اور یہ آپ اگر اس کو وہی ولایت بھی کہنا چاہتے ہیں، مبشرات بھی کہنا چاہتے ہیں، القاء بھی کہنا چاہتے ہیں، اسباب بھی کہنا چاہتے ہیں، انعام بھی کہنا چاہتے ہیں، ہر رنگ میں آپ اس کے بہت سے رنگ ہیں. کشف بھی ہے جہاں پہ میسج آ جائے آپ کو مل جائے. بالکل پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے، اور ہو بھی رہا ہے دنیا میں. اور جو اسی کا نام انہوں نے نبوت رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. چوتھا پوائنٹ ہو گیا ہے کہ احمدیہ لٹریچر میں انہوں نے اپنے لیے نبی کا لفظ کثرت سے استعمال کیا ہے. پرانے نئے ہر لٹریچر میں نبی کا لفظ استعمال کیا ہے انہوں نے اپنے لیے بھی، اور ان کے لیے نبی کا لفظ استعمال ہوا بھی ہے. لیکن جب جماعت سے پوچھا گیا ہے تو انہوں نے نبوت کی جو ایکسپلینیشن کی ہے وہ یہی کی ہے کہ غیر حقیقی، غیر مستقل، تمثیلی، مجازی، اقتصابی، بس اس طرح کی انہوں نے آگے ذلی نبوت کی بات کی ہے. انہوں نے کوئی ایسی مکمل اور ایک انڈیپینڈنٹ اور مستقل نبوت کی بات نہیں کی، غیر حقیقی اور غیر مستقل نبوت کی بات کی ہے. یہ 5 پوائنٹ ہے. لیکن جب ہم باتیں کرتے ہیں تو احمدی ٹوٹل اس کو صرف نبی پر لے آتا ہے، اور لاہوری جماعت ٹوٹل اس کو مجدد پر لے آتی ہے. مجددیت، مجدد تجدید کرنے والا ہوتا ہے. مجدد آپ کے خیال میں تو قائد اعظم کو بھی مجدد مانتا ہوں، کیونکہ آپ کے لیے اتنا بڑا کام کر کے آپ کو ایک ملک بنا کے دے گئے. باقی سارے مجددوں نے تو 4 کتابیں لکھی، لیکن قائد اعظم نے تو آپ کو ایک اسلامی ملک بنا کر دے دیا. تو میں تو قائد اعظم کو بھی مجدد مانتا ہوں. مجدد تو بڑی اوپن سی ٹرم ہے. میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے کہیں جانا ہے کہ میرے سوال کا جواب کس وقت شروع ہوگا. ابھی تک آپ کے سوال کا جواب بھی اس نشست میں نہیں ہوگا. ہاں تو پھر یہ کہہ رہے ہیں میرا وقت نہ جائے گا. آپ نے مجھے صرف یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے ختم نبوت کا مطلب مہر لیا ہوا ہے. میں آپ سے ہار مان گیا. بس میرے پاس یہ 5 پوائنٹ ہے. میں اس بات کو تو سن لیا جی عامر نذیر صاحب. پھر دوہرا دیتا ہوں کہ عامر نذیر صاحب تسلی ہو گئی. پہلے میں نبوت کو ختم مانتا ہوں، ہر رنگ میں، پرانا نیا سارے.
दूसरे वाले आपने में बात कर दिया वाटर साहब, अहमद अली साहब तसल्ली हो गई है। मुबशरात की कसरत को नबूवत का है उन्होंने। एक बात उन्होंने ठीक कही है, बाकी बातें उनकी गलत है, एक बात उनकी सही है, वो मैं चाहता हूँ वो मुकम्मल कर लें। और चौथा पॉइंट है कि हम जमात ने बिल्कुल कसरत से नबूवत का लफ्ज़ इस्तेमाल भी किया, करते भी हैं और करते रहेंगे भी। और जब हमसे पूछा जाता है कि यार नबूवत तो हो नहीं सकती, तो ये कैसी आपकी नबूवत है, तो फिर हम बताते हैं ज़िली बरूज़ी गैर मुस्तकिल और तमसीली इजाज़ी मजाजी जो भी आप पूछ लेते हैं हम बता देते हैं। तो ये है 5 पॉइंट। और यहाँ तक ही है, और मजमून अगर किसी ने खोल लिया है और किसी ने झूठा झूठा खेलना है या किसी ने सच्चा सच्चा खेलना है, जितना मर्जी खेले, लेकिन कमाल नबूवत दुनिया में जारी है, इनको नहीं कोई रोक सकता। चाहे आप उसे वही वलायत कहें या वही आमा कहें, अल्लाह इंसान से बातें करता है। जज़ाकल्लाह। ਅਮਨ ਸਭ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ हजरत साहब ने भी क्या है कि जब तुम में रसूल आवें तो उसके तहत मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूँ, वो भी ये नहीं साबित कर सके। और ख़त्म नबूवत भी कि हजरत साहब का अकीदा था कि ख़त्म नबूवत का मतलब है मोहर। जिस शख्स का अकीदा ये है कि ख़त्म नबूवत का मतलब है तमाम नबियों का ख़त्म करने वाला, जिस पे नबूवत ख़त्म हो गई, उसके बाद ना कोई नया नबी है ना कोई पुराना, वो शख्स खुद कैसे अपने नबी होने का दावा कर सकता है? गलत। अच्छा, ये बात उनकी ठीक है वाटर साहब की कि ये जो आप लोग करते हैं ना जिद इस बात पर कि वो उनका नबूवत का दावा है ही नहीं, सिर्फ मुजद्दिद होने का, ये भी बात गलत है। और ये जो दूसरे नबी करना शुरू कर देते हैं, वाटर साहब ठीक कह रहे हैं कि जब उनके मुंह में वो मज वाला नला तुनो ना, तो फिर वो कहते हैं नहीं नबी से मराज ज़िल्ली नबी है, बरूज़ी नबी, फिर वो आ जाते हैं अपनी असलियत पर। तो दोनों फरीकैन ही आप बात के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। सच्ची बात यही है, एक तो ये बात है कि मिर्ज़ा साहब के नज़दीक नबूवत बांधा है, ये बात ठीक है। खातमन नबीयीन को वो इन्हीं मानों में लेते थे कि नबूवत का सिलसिला बंद है, नबूवत का जारी का जराए नबूवत का अकीदा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ख़ास सेंस में अपने आप को नबी कहने की कोशिश की है। और उसके लिए जाहिर है कि कोई नज़ीर करनी पड़ती है, ऐसे तो हो नहीं सकता कोई बगैर असूल के बंदा दावा कर दे। असूल वहाँ पे था कोई नहीं कि अपने आप को कैसे नबी कहें। तो उन्होंने जो असूल जिस तरह से गढ़ा है ना कि इस तरह करके चादर पहन के चश्मे से पानी पी के नबी आ सकता है, वो उसकी गुम होके खुदी के अंदर नबी पाक की ज़ात के अंदर फनाफिल रसूल होके, वो सारी जितनी कुछ है ना, वो बात उसको आप इजराए नबूवत के सेंस में भी ले नहीं सकते। लेकिन उन्होंने जो कोशिश की है, बहरहाल उसका नतीजा तो यही निकलता है कि वो एक सेंस में इस तरह करके वो अपने लिए जो उन्होंने खिड़की खोली है, वो एक शक्ल इजराए नबूवत की भी पेश करते हैं, वरना दूसरी तरफ वो मुस्तकिल तौर पर नबूवत बंद मानते हैं। नबी पाक के बाद नबूवत का जो सही आप कह रहे हैं कि खातमुन नबीयीन का माना, उन्होंने कभी भी तस्दीकी मोहर नहीं लिया, ये ठीक है बात। उन्होंने खातमुन नबीयीन का मानी ऐसी मोहर लिया है जो सील करती है, क्योंकि जगह जगह उन्होंने लिखा हुआ है ईसा अलैहिस्सलाम के आने से मोहर टूटती है। कौन सी मोहर टूटती है? वो कहाँ है मोहर है? वो लफ्ज मोहर का कौन सा है? खातमुन नबीयीन वाला, वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, वो ऐसी मोहर है जिसको सील वाली मोहर कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के आने से वो कहते हैं मोहर टूटती है, यानी ये सील वाली मोहर है, टूट जाएगी तो कोई चीज दाखिल होगी, वरना दाखिल नहीं हो सकती, नबूवत का सिलसिला बंद होगी। तो नबूवत तो वो बंद ही मानते थे, नबूवत का सिलसिला तो बंद ही मानते थे, लेकिन अपने आप को नबी कहने के लिए जो कुछ उन्होंने किया है, इसी ने सारी तबाही की है, इसी ने बेड़ा। अब वो ऐसे ही है कि जैसे वो कहानी मारते थे पुराने जमाने में ना, वो छत लिपन के लिए राजा साहब कच्चिया कोठियां नूं जे कर लिपी है ना, आखिर टहंदे टह जांदे। तो उसमें वो जो कहानी मारते थे ना, उसमें जब पानी ज्यादा डाल देते थे ना, तो वो कहानी फिर काबू नहीं आती थी। वो कहानी आपके पैरों के साथ खिलरती चली जाती है, क्योंकि वो हलवा सा बन जाता है। आप उसको एक ढेर बनाना चाहते हैं, ढेर वो बनता नहीं, इकट्ठा वो होता नहीं, बल्कि वो क्या होता है, वो एक महलूल सा बन के ना, नीम ठोस जिस तरह वो खिलरता चला जाता है पूरे सेन में। अब मिर्जा साहब ने
उसको संभालने की कोशिश की है, लेकिन वो संभल सकता नहीं। वो एक ऐसी कहानी है जिसमें पानी ज्यादा है, तो वो पैरों से पूरे सिंध में खिलरी हुई है। अब कोई दुनिया में माँ का लाल पैदा नहीं हो सकता जो आपके इस इख्तलाफ को फैसला करके पकड़ा दे कि भाई इन दोनों में से ये गलत है, ये मुफ्ती है, ये मसीह है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी लफाजी उसमें की है, इतना उसमें पानी डाला है मिर्जा साहब ने, कहानी सारी खिलर गई। ये है पूरी बात। अहमद वली साहब, खैर वो तो आपका अपनी राय है, मैं उसका वो नहीं कहता हूँ, लेकिन आप ये तो देखते हैं ना, आप ये तो देख रहे हैं कि किसका मौक़िफ़। मैं आपसे ये नहीं पूछता हूँ कि मुझे पता है आपका तो ना अक़ीदा है, ना मैं आपको उसका कायल कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ तो नज़र आती है कि कौन जस्टिफाई कर देता है, चाहे गलत ही आपके नतीजे में, मैं जो जस्टिफाई करूँगा वो आपके नतीजे आपके सामने गलत ही होगा, वो आपके सामने दुरुस्त नहीं। लेकिन ये उस चीज़ का जवाब तो नहीं दे सकते। ये उसके जवाब नहीं जब देते तो इसका क्या मतलब है कि हम दोनों फरीकों को अगर देखा जाए तो फिर किसके अकायद आपकी नज़र में दोनों के गलत हैं। लेकिन जब एक बंदा एक दूसरे बंदे को नहीं सेटिस्फाइड कर सकता, जवाब नहीं दे सकता, तो फिर क्या मतलब हुआ कि कौन दुरुस्त है उनमें से। आपकी नज़र में भले दुरुस्त वाला भी गलत ही सही, लेकिन एक तो कुछ दुरुस्त तो है ना। हज़रत साहब ने खुद कह दिया है कि इन्होंने मेरी बात को समझने में गलती की है, मेरा मकसद ये नहीं है, ये तमाम इल्म मुझे अल्लाह ने दिया है, जिसने समझना है वो समझ ले। एक चीज में मैं आपकी तारीफ करूंगा, नहीं समझा मेरे एक चीज वो है में मैं कि आपकी तारीफ को नहीं समझा, क्योंकि जो बंदा अगर मैं जस्टिफाई ना कर सक रहा होता तो मैं ये मान लेता कि भाई मैं नहीं समझाऊं। अगर मैं जस्टिफाई ना कर सक रहा होता तो मैं ये मान लेता कि भाई हजरत साहब की बात ठीक है, मैं नहीं समझा। लेकिन हजरत साहब के हवाले ही जिस तरह के भी मर्जी हैं, आप उसको कहे कि जी ऐसे उल्टे, यहाँ ये कह दिया, वहाँ ये कह दिया, कन्फ्यूजन हो गई, ये भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। दोनों जो जस्टिफाई करते हैं, जो बंदा जस्टिफाई कर जाता है वो ठीक है, दैट्स इट, चाहे वो खिलाफत वाला है चाहे दूसरा। ये नहीं साबित कर सकते कि हजरत साहब ने जिस तरह अपना दावा मुजद्दियत किया है और उसको एक्सप्लेन किया है कि मुझे इस काम के लिए ये ड्यूटियां बतौर मुजद्दिद मेरी लगाई गई हैं, ये ऑल सारी बता रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि इसकी शहादत ये है कि मैंने जो दावा किया है इधर से भी इसकी शहादत मिलती है, इधर से भी इसकी शहादत मिलती है और इधर से भी मिलती है, लिहाजा मैं अपने दावे में सच्चा हूँ। अब उसमें ये कह देना कि जी मुझे नबी और रसूल किया जा रहा है, ना मोहरे नबूवत कहा जा रहा है कि जी ये मोहरे नबूवत और आते रहेंगे, तो कौन जस्टिफाई कर रहा है? एक बात आपसे मैं हमेशा पूछता हूँ लाहौरी ग्रुप के लोगों से कि यार आपने बड़ा अच्छा फैसला कर लिया कि आप एक खेल को बढ़ाया नहीं, आपने जहां तक उसको समझा ना उसको दाखिल दफ्तर कर दिया। इसको सरकारी अल्फाज में कहते हैं कि फाइल को ना दाखिल दफ्तर कर दिया, और आपने रूहानियत वाला चैप्टर वहां पे क्लोज करके एक अंजुमन बना दी, और आपने कहा कि बस अब ये अंजुमन इंतजामी काम करेगी, अकायद के काम वहां पे खत्म हो किसने गए। भाई आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने अंजुमन बनाई। अंजुमन अभी लड़ाई नहीं करते, प्लीज अभी लड़ाई ना करें बीच में, अंजुमन बात बनाई को आगे किसने? जाने दें, लड़ाई मत करें। हमने और मजमून मेरे पर भाई जाना है। मेरे आप भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा आपने एक अंजुमन बना ली, मैंने सवाल पूछा अंजुमन किसने बनाई? हाँ बहुत अच्छा किया, वो अब बनी, शुरू में बनी अंजुमन, ठीक है। किसने बनाई? मेरा सवाल है किसने बनाई? हजरत मसीह मऊद ने बनाई। अच्छा, अभी आपने कहा था कि आपने एक अंजुमन बनाई। अभी ये मजमून नहीं ना मैं बदलना चाह रहा था प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, मैं मजमून नहीं बदलना चाह रहा। हर बात हम वापस अब मैंने इनके मुंह से मैं निकलवाया, आपके फायदे की बात अंजुमन आपने करूंगा, बनाई। मैं आपके फायदे की बात करूंगा, अल्लाह के बंदे, मैं आपके फायदे की बात करूंगा। नहीं, मेरा फायदा उसमें नहीं है कि जो आपको अल्लाह के बंदे पहले काम और उसमें मेरा फायदा भी हो, मुझे वो फायदा कबूल नहीं है। नुकसान कहना पहली बात सुन, गलत बात करके मेरा फायदा होगा ना। तो आप बात ही नहीं सुनते, आप तो अपना भला नहीं करने देते किसी बंदे को। अच्छा चलो, तो गलत बात करके मेरा भला था तो 100 बिस्मिल्लाह करो। यार मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। एक मिनट अपना वाटर साहब, एक मिनट ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1913 ਦੇ
ਪੈਗਾਮ ਸੁਲਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, 7 ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ 7 ਫਰਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਨਿਕਲ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜ ਕੈਸੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਵਾਕਈ ਤੰਗ ਜਾ ਕਰਦੀ, ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਜੇ ਗਏ ਹੋ? ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਘਰ ਛੇੜ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੀੜਾ, ਓਏ ਬਰਾੜ ਇਹ 1 to 5 ਨਹੀਂ, ਇਹ 1 to 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਾਨੀ ਮੋਹਰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀ ਨਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਲ 2 ਦਾ ਸਫਾ 317 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ